until they set the entire thing up, I'll just give a brief about Hack Station. How many of you all have come for the event here before? मतलब Hacks के event के लिए कितने लोग आए थे? बीच में आपके लोग आए थे, good. So basically, Hack Station is a community. Right now we are only in Mumbai. We do multiple things. CTS भी होता है, हम लोग ऐसे offline free events भी होते हैं. And we also collaborate with colleges, with companies, and we help them out with their cybersecurity part. Right? Again, monthly events होते हैं यहाँ पर. So make sure that you join in our WhatsApp group, so then you will be updated with it. उसके अलावा ऐसे कुछ नहीं, वॉलंटियर अगर करना रहेगा तो भी उसमें लेट अस नो. बस ना ज्वाइन करो, जो भी ओपनिंग्स आएगा लाइक एग्जांपल फॉर अप्लाई फॉर कंपनी, यू कैन आल्सो आस्क if there is an employee from the company in the group and they might end up just referring you out. It works like where to find them. कितने लोगों को ऐसे कुछ आइडिया आता है इसका कि कहाँ से मैं टाइटल चोरी की? हैरी पॉटर तक ही ठीक है. Okay, this was actually from one of the movies which was fantastic. Beasts and where to find them. So the idea behind this PPT is something different. Most of the time, a lot of them might be doing bug bounty, and you all look for the same vulnerabilities. एक XSS है, एक injection है. आई उसके लिए भी कोई मैन्युअली नहीं ढूंढता. सब लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटेड टूल लगा लेते हैं, बोल देते हैं भाई बग तो मिलता नहीं है, बग बाउंटी इज डिफिकल्ट, कुछ आता नहीं है. That is not the case, and that is what I'm here to tell you. So here, I will not be talking about those bugs which might pay you like thousands of dollars, but I'll maybe talk about those bugs which will at least get you $50. Right? The low severity bugs which a lot of people skip up because they don't check. And ये सब के लिए also if you are good in automation and scripting and things like that, you can definitely set something up to scan for these bugs. So again, why this session? I told you that. What to expect? Basic level bugs. That's going to be point number one. Second point is a lot of people are now going to start with your first job, and people either get into SOC or they get into VND. And then you have people who get into IT support, जो भी एक आ जाता है. But for the ones who get into VND, I remember that there have been sessions or there have been interviews where people will come and tell you, ये app है hack करके. And those apps are pretty secured. Why? Because they have those low level functions. तो हम क्या करते हैं, हम एक्सेस ढूंढने बैठते हैं, लेकिन आपने की 5 घंटे का इंटरव्यू था, 5 घंटे के लिए ढूंढ रहा है, एक्सेस कुछ नहीं मिलेगा. यू गो देयर, यू आर लाइक रैंक रिपोर्ट है, निकलो नेक्स्ट पर्सन को ले लेंगे. और इवन इफ दे टेक यू द लोअर सैलरी. व्हाई? बिकॉज द माइंडसेट व्हिच यू हैव शुड बी बग बाउंटी, यस, बट इट शुड आल्सो बी ऑर्गेनाइजेशन के पोस्चर के बेसिस पे. Right? Even these low severity bugs, when you chain them together, you can show them that this does have a risk in the organization. And 2 or 3 low severity is always built up better than an empty report when you enter corporate. Right? Who is this for? Again, freshers के लिए है, and bug bounty hackers के लिए the first section is there. For the freshers, I have another section in this PPT. So I'm Ayush, I'm the founder here at HackStation. I do a lot of stuff. I am into red team and also I'm into थोड़ा compliance भी कर लेता हूँ. Development, DevSecOps, automation and open source as well. So like I also develop CTS for HackStation as well. So we'll start with basic web-based vulnerabilities. Context first हम लोग चालू करते हैं. Who can give me a basic idea about it? इसको पता रहेगा तो Linux के बहुत सारे हैं, भर के आए हैं. Concurrency problem. Time to check and time to use. जिसको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है. बेसिकली क्या होता है is that let's say that there is an operation which is to happen on the server side, right? And that operation is split into 2 parts. ऐसे पकड़ लेते हैं. So in this what can happen is that you send 2 requests simultaneously. जब तक they record that this event is done and they put in the database, तब तक second वाला event में success हो जाता है. That can be called as a concurrency flaw. नीचे I've also put in QR codes. I'll be sending this PPT later on the group. QR code के अंदर HackerOne के reports है जिसके अंदर bounties वगैरह मिले हैं. And कोई के अंदर research के लिए links are there. When they found it on real life application, so it is actually there in the wild as well. Right? अभी इसके अंदर let me give you a small example as to what can happen. ऐसे पकड़ लो कि there is a free tier account and there is a paid tier account. Free tier account में you can only make 3 projects. ऐसे पकड़ लो and paid tier में आप 10 projects बना सकते हो. अब इसमें क्या होगा, बैकएंड वो क्या करता है, वो उसके अंदर पहले चेक करता है कि भाई इसका प्रोजेक्ट है कि नहीं. इफ नॉट, थोड़ा प्रोसेसिंग करके प्रोजेक्ट क्रिएट करता है. नाउ इफ आई सेंड 2 requests simultaneously,
while I'm at two projects, ऐसे पकड़ लो, 3 का limited, 2 पे मैंने 2 simultaneously भेजा. There is a possibility. So what this plot tells us is that अगर मैंने दोनों को भेजा, दोनों पहले चेक करेंगे. अगर उन्होंने पैरेलली चेक किया, तो दोनों में ओके लिख के आएगा कि हाँ ये बंदा प्रोजेक्ट बना सकता. So they end up with 4 projects instead of the limit only being 3. That is a basic idea of concurrency law which exists. अब इसके अंदर के थोड़े थोड़े मैं एग्जाम्पल देता हूँ which is already there in the links as well. The example was HackerBug के ऊपर when you hack you get a bounty. बाउंटी के पे आउट के लिए आपको ईमेल के ऊपर एक लिंक आता है, उधर क्लिक करके प्रोसेस होकर बाउंटी मिल जाएगा आपके अकाउंट में. दैट इज वेयर दीस पीपल फॉर द कॉन्करेंसी व्हाइल विड्रॉइंग द बाउंटी वेयर दे आर एबल टू सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट टुगेदर एंड काफी पैसा मिला. बट वो ऑब्वियसली लाइक द हैकर टीम फाउंड दैट आउट कि भाई दिस इज नॉट सपोज्ड टू हैपन एंड दे कॉन्टैक्टेड देम एंड दे गिव देम अनदर बाउंटी एज वेल. राइट, सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच इज देयर. ऐसे और बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज आए हैं. आई बिलीव Booking.com वगैरह के अंदर भी एक दो आए थे इनके पास. So this is what the concurrency flaw is. अभी how to test them में identify the endpoint and action, turbo intruder work के लिए है and curl करके curl पता है. curl की इसमें भी आप चीजों को change कर सकते हैं. You can change HTTP requests. उससे क्या होगा that they'll be sent together. अब this sounds nice, this sounds great, but why is this known as a low severity vulnerability? Because it is very difficult to exploit this in the world. क्यों? अभी आपने सोचो कि आप भेज रहे हो, अगर आपका इंटरनेट थोड़ा भी स्ट्रगल होगा, सो देयर इज अ चांस दैट दिस अटैक मे नॉट रीच द सर्वर सक्सेसफुली और आपको उसमें आए मतलब फॉल्स पॉजिटिव या ट्रू नेगेटिव काइंड ऑफ आ जाए. सो द वल्नरेबिलिटी माइट एक्चुअली एग्जिस्ट बट आपके इसमें नहीं है. क्यों? इंटरनेट इशू. दैट्स द रीजन दिस थोड़ा डिफिकल्ट. ये टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज यूजुअली कहाँ बेस्ट आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, जहां पर वो परमिशन चेक करते हैं उसके बाद आपको फाइल का एक्सेस देता है. If you will go more and if you read about the reports in Linux operating systems and things like that, वहां पर आपको ये vulnerability का severity और higher मिलेगा and you'll get it better as well. Then you have web cache reception. Caching किनको तो पता है, access कर सकते हो. cache वेब सर्वर जब हम लोग भेजते कैश होते हैं रिक्वेस्ट, टेम्पररी स्टोरेज है वो बोल सकते हो. अभी CDNs किनको पता है? मेरे को भी पता है, बट व्हाट डज इट डू? CDN के इसमें GitHub के ऊपर किन ने एक फ्री वेबसाइट होस्ट करके रखा GitHub पेजेस पर. किसी ने भी नहीं किया इधर, किया है राइट? GitHub पेजेस पे आप जो पोस्ट करते हो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड फॉर CDN. उसमें क्या होता है, आपका जो डायनामिक प्रोसेसिंग है वो नहीं आता, जो स्टैटिक अपने पास नेटवर्क पे होता है. इमेजेस, CSS, HTML, plain JS फाइल, ऑल ऑफ दोस थिंग्स दे आर सेंड वाया द CDN. अब CDN क्यों यूज होता है? क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर ऑन नहीं होगा. ठीक है, if you have it on CDN your costs will reduce by almost मतलब 1/10 तुम्हारा कॉस्ट हो जाएगा. So 10x savings approximately पकड़ if you are using CDN. अब ये कहाँ पर कैसे होता है? So when you are setting up a CDN, right, it is very interesting way to set up the configuration. क्यों? क्योंकि अभी आप हर एक फाइल को तो CDN के अंदर डाल नहीं सकते, तो आप क्या करते हो स्लैश and एक स्टार डाल दो एस्टेरिक्स. क्यों? बिकॉज दैट विल टेल कि भाई हम लोग को हर एक डेटा जो ये पाथ के बाद आ रहा है उसको तो कैश में भेज दिया. अब इसके अंदर आ जाती है WCD वाला जो वल्नरेबिलिटी है वो. नाउ व्हाट डज दिस डू इज इट टेक्स एडवांटेज ऑफ दैट थिंग फॉर यू टू लोड सम काइंड ऑफ सेंसिटिव डेटा. एग्जांपल, लेट्स से दैट /API/profile इसके ऊपर आपके सब सेंसिटिव डिटेल्स आ रहे हैं. लेट्स से एग्जांपल पासपोर्ट नंबर भी आ रहा है. ठीक है, अब उसके अंदर अगर मैंने एक स्लैश डाल के जैसे पुट नॉन एग्जिस्टेंट डॉट CSS, CDN क्या करेगा? पैटर्न मैचिंग बोलेगा भाई ये तो CSS है, ये तो हम CDN के थ्रू भेज देंगे. क्या बोलेगा कि भाई नॉन एग्जिस्टेंट CSS एग्जिस्ट तो नहीं करता, तो एक काम करते हैं जो ऑलरेडी पेज के ऊपर दिख रहा है उसी को हम कैश कर देते हैं एंड नेक्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा कैश को सर्व कर देंगे. राइट, अगेन दिस इज अ मिसकॉन्फ़िगरेशन. जब लोग CDN सेटअप करते हैं तो ऐसी दिक्कतें आती है. सो अभी ये ऐसे में सेटअप कर दिया, अटैकर क्या करेगा? ये लिंक बना देगा, ये लिंक आपको भेजेगा. आपने क्या देखा कि भाई URL is proper, domain is proper, I will just open it. You will open it, it will hit there, it will cache what is seen on your screen, which means कि आपका पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह उसके अंदर दिखेगा. अब अटैकर क्या करेगा? वही सेम लिंक अपने इसमें खोलेगा. आपने ऑलरेडी खोल दिया है, इट इज इन द कैश, सो दैट रिक्वेस्ट इज नाउ बीइंग सर्व्ड फ्रॉम द कैश. तो आपकी जो प्रोफाइल आपको दिखाया जाएगा वो अटैकर को दिखेगा. This is what web cache reception says. Why is this low severity? Usually the ones who set up the cache
वो लोग देखते हैं and then they set it up. All the testing and all is done properly, but often like in a few small startups and things like that, जहाँ पर वो लोग बस cash कर रहे हैं to save cost, at that point of time ये होने के बहुत high probability है. ठीक है, अभी इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ऑलवेज फर्स्ट तो एंड पॉइंट्स वगैरह डिटेक्ट कर लो कि कौन से एंड पॉइंट्स है एंड उसके आगे इफ यू आर गोइंग टू पुट सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गिव इट अ टेस्ट. एक एंड पॉइंट ढूंढ लो नेटवर्क टैग खोल के, यू विल बी लाइक ओके दिस इज द रिक्वेस्ट, इसके अंदर सक्सेस डेटा आ रहा है, इसके अंदर मैं स्लैश कुछ डाल के सीएसएस पे डाल दूंगा, राइट? देन वेट अ व्हाइल एंड देन ट्राई टू रीलोड इट व्हाइल लॉग इन फ्रॉम अदर अकाउंट. If you are able to see that same data, it means that this is there on the server. ठीक है, इन द वे अगेन मैंने थोड़ी नीचे डाले हुए क्यूआर कोड वहां पे आराम से स्कैन करता है. और तुमको पता है और क्या है? गूगल ऑथेंटिकेशन. बट व्हाट इज दैट? OIDC Pro कहता है. So it's not necessarily Google. That's why sir also said it can also be for the organization. Right? कि आपके पास एक इंटरनल एक्सेस वगैरह है वो सब के लिए भी. So what people thought was that let us make this thing some kind of standardized manner. ये ऐसे यहाँ एक रिक्वेस्ट था, वहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या फीस आएंगे, all of those things. That becomes the OpenID connect. Right? That is the OpenID connect standard. तो उस बेसिस पे चीजें कॉन्फ़िगर होती है. Now Google के लिए इट्स वेरी इजी, लाइक फॉर द डेवलपर्स हु आर देयर जो Node.js में करते हैं, Passport.js आ जाती है, आप बस एक बार लगा कर वो चल जाता है. Right, a lot of times, a lot of these things are pretty simple when you are going for something a bit more standardized. But there might also be a possibility that you are having your own authentication. Example, even Axe के अंदर there is all.access.com. हम लोग खुद का आप लोग ने OIDC authentication बनाया है. Right. So at that point of time to integrate it, you don't have any ready-made packages which can just fit एक की डाल के चलते हैं. वो लोग काफी टाइम मैन्युअली बनाते हैं. And that is where this issue comes in. So, an example here is you can see towards the end उधर me access token करके यानी API response वापस आ रहा है. Second last and third last वाले में. अगर तुमने ये सर्वर से जा रहा है, the app is the backend. Backend से it is going here to Facebook, that can be any server. ठीक है, but when it is going from the backend, अगर मैंने front-end से भेज दिया तो क्या होता है? Token चोरी हो रहा है. Right. All of this thing is not supposed to come here in the front end. So that is where these misconfigurations come in. इसके अंदर again there are multiple issues that might come in, sort of single issue which is there. तो multiple issue के अंदर एक होता है redirect URI manipulation and open redirect chaining. इसके अंदर मतलब क्या है कि आप जब OAuth के अंदर जाते हो, if you might have noticed कि on whichever page you are, आप वहां पर login क्लिक करते हो and वापस उसी पेज पे जाता है login के बाद. क्यों? वो रीडायरेक्ट URI है. इट टेल्स कि भाई लॉगिन होने के बाद तुम यहाँ पर जाओ. एक स्टेट टोकन भी होता है, कभी भी URI पे होता है. व्हाट इफ आई एम एबल टू सप्लाई माय ओन URI इनसाइड ऑफ दैट? देन व्हाट इज इट वैलिडेटिंग इट प्रॉपर्ली? मतलब क्या हो गया कि आपने देखा facebook.com का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर का OAuth है मिसकॉन्फ़िगर हुआ है, इट इज सेंडिंग यू टू email.com फॉर एग्जांपल. So that is also an issue. Why? Because you can put the redirect URI whatever you want. And that becomes a vulnerability. That is point number one. Second is token leakage. That is via URL fragments. इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो सेंसिटिव टोकन्स है वो हम लोग UID को भेजें. जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन बिफोर, सर्वर से फेसबुक पे जा रहा है, उसके हम लोग ब्राउजर से फेसबुक पे भेजें. दैट इज द सेकंड लेवल इशू है. थर्ड वन इज प्री अकाउंट टेक ओवर. वेरी रेयर. ठीक है, इस पे एग्जांपल क्या होगा दैट लेट्स से दैट देयर इज OAuth एंड देयर इज नॉर्मल यूजर नेम पासवर्ड. अगर मैंने मेरे एंड से एक यूजर नेम एंड पासवर्ड से किया एंड अगर ईमेल वैलिडेशन नहीं हो रहा है, मेरे को डायरेक्ट अकाउंट बनाना है, एंड इफ अ पर्सन इज एबल टू यूज OAuth एंड यूज इट टू द सेम अकाउंट विदाउट चेंजिंग द पासवर्ड, दैट बिकम्स एन इशू. तो लेट्स से एग्जांपल कि कोई यहाँ पे बैंकिंग थोड़ा ऊपर चला गया, लेट्स से देयर आर ऐप वेरी जस्ट अ बेसिक पेमेंट्स और यू हैव सेंसिटिव डिटेल्स, पासपोर्ट है वापस उसके अंदर. ठीक है, अब इमेजिन करो कि आपने बस आपको देखा कि अकाउंट क्रिएट कर देना है with whatever you know that your victim is going to log in with. Victim उधर जाएगा, बोलेगा भाई मेरे पास तो Gmail अकाउंट है, Google अकाउंट है, साइन इन गूगल कर दो. कर दिया, वो आराम से अकाउंट यूज कर रहे हैं, बट वो पासवर्ड अपनी भी आ रहा है. सो द अटैकर कैन स्टिल लॉग इन विदाउट द यूजर नेम, कुछ ट्रिगर वगैरह भी नहीं होगा. अगेन वेरी रेयर इन द वाइल्ड, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी एंड दिस हैज एक्चुअली हैपेंड. ठीक है, अगेन उधर एक QR वगैरह भी डाला, उसके अंदर डिटेल्स मिल जाएगा. अभी ये कहाँ पर आपको मिलेगा?
यहाँ पर आपके पास एक तो एसएसओ का रहेगा, कोई ना कोई लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद whatever thing, and especially if it is something trusted, so there's a more higher probability that you will succeed. क्यों? क्योंकि अगर गूगल रहा तो एक बार में हम सोच सकते हैं कि भाई किसी ने पासपोर्ट कुछ लगा दिया, कस्टमर तो बहुत हाई चांसेस है उन्होंने खुद ने मैन्युअली इम्प्लीमेंट किया, ठीक है. Now how do you test for them? Redirect URI to first bucket. Try to tamper with that. See what it is accepting, what it is not accepting. ठीक है, that's point number one. Second is sensitive token वगैरह देखो. If example it is something for Google या कुछ, are you able to request another token using a token which is already provided to you? वो आप एक बार चेक करो. अगर वो हो रहा है मतलब that they have screwed up somewhere in the configuration. Frontend से आपके पास जा रहा है. And native OAuth functionality which is for the third one which is there. If there is no email validation, then you can try this and you can go for this. जहाँ पर आपने अपने साइड से एक चीज सेटअप किया है, ईमेल वैलिडेट नहीं हो रहा है, गूगल से भी वो हो रहा है, एंड स्टिल यू आर को लॉग इन यूजर पासवर्ड. ठीक है, क्लियर है आपको? नींद आ रही है? यूनिकोड नॉर्मलाइजेशन और होमोग्लिफ्स कितने लोगों को पता है? So अभी I guess you might know the not to the term. You all know those attacks where Google के अंदर वो लोग एक जो कोड डालते हैं वो ग्रीक सिंबल रहता है, कभी कभी आया होता है कोई दूसरे लैंग्वेज को होता है होमोग्लिफ्स. ठीक है, अब क्या होता है कि if you are going to go for emails and all, where you are trying to send a spam email, phishing email, 90% of email providers को ब्लॉक कर देंगे, उसमें दिक्कत नहीं आती. बट ये कहाँ नहीं होता है ब्लॉक? इन वेब एप्लीकेशंस where you are having custom input. आप एक यूजर नेम ले रहे हो, किसी से आप किसी से ईमेल ले रहे हो, कोई भी चीज ले रहे हो, तो देयर इज अ चांस कि ऑन द बैक एंड इट इज मेसिंग अप विद इट. एग्जांपल क्या है कि इसके अंदर हो जाती है यूनिकोड नॉर्मलाइजेशन बग्स. लेट्स से कि आप एक XSS डाल रहे हो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, राइट? सो यू हैव योर नॉर्मल एंगुलर जो आपके पास होता है एंगल ब्रैकेट्स आप डालते हो, उसका ये सेम वर्जन ग्रीक में भी है. एंड देयर हैज बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस where when you send that Greek का thing, firewall बोलते हैं जाने दो चलेगा, not an issue, and वो bracket में normalize होके वो वापस angular bracket बनता है, right? Those are where some of these bugs come in. इनके अंदर there is another bug also it was there which was for username. Mozilla का एक था, Mozilla का Firefox का एक था इसका issue. उसमें क्या हो रहा था कि you cannot create an account with the username Mozilla, right? Now what did this attacker do? उसने I को Greek वाले के solve कर दिया, उसका account create कर दिया. इससे क्या हो सकता है कि यू कैन हैव इश्यूज वेयर योर लेट्स से इट्स अ सोशल मीडिया, ठीक है, कि आपको भाई अमिताभ बच्चन से डीएम आ रहा है, वो अमिताभ का है ग्रीक कैरेक्टर, राइट? यू आर गेटिंग इट. तो वैसे टाइप के इश्यूज आ सकते हैं. सो दैट विल कॉज सम काइंड ऑफ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इनसाइड ऑफ योर एप्लीकेशन. दैट इज वन वे. सेकंड इज इट कैन आल्सो बी अ वे दैट यू एंटर इनसाइड द एप्लीकेशन टू बाईपास द फायरवॉल. ये दो मेन चीजें इसके अंदर होती है. कहाँ पर ये ढूंढ सकते हो? सोशल मीडिया के अंदर तो बेस्ट ही हो गया अगर मिल गया तो. अदर देन दैट प्लेसेस विद यूजर इनपुट्स इन ईमेल, wherever you plan to do your injection attacks, you can try to use these there, right? And homoglyphs के आपके से डिक्शनरी भी आती है, ऑनलाइन ढूंढोगे भी यूज get that, you know, and I can be substituted for this Greek character. Lookalike characters जो है वो आप डाल सकते हो and see that how the server is reacting to it. ठीक है? HTTP पैरामीटर वैल्यूशन. तो कितने लोग ने क्लास के अंदर प्रोग्रामिंग किया? पाइथन क्लास, Node.js, Express, 1%. अभी पैरामीटर्स क्या होते हैं? जब आप कोई URL को ब्राउज कर रहे हो, यू पुट क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू व्हाटएवर. बट अगर मैं दो बार डालूं तो क्या? क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू 1 and ID equals to 2. Which one will be seen where and how it will work? That is what HTTP parameter solution works on. Let's say कि आपके पास एक सिस्टम है, आपका एक मेन वेब सर्वर है that is built in let's say Node.js and you have another one microservices चल रहे नीचे वो Python, right? अब ये पैरामीटर कैसे उसको पास हो रहा है, क्या आप डिटेक्ट कर? An example is class के अंदर the latest one whichever you put that is considered. ID 1 and ID 2 डाला तो 2 ही जाता है. Node.js के अंदर वो array बन जाता है 1, 2 and that is how it passes. Same goes for firewalls. You have to see how your firewall is configured. वरना क्या हो जाएगा? firewall first वाला पकड़ है आपका application second वाला, तो firewall यूज कर सकते. You are able to bypass that and you are able to attack the application directly.
ठीक है, इसमें मतलब क्या हो जाएगा, जो मैं i1 का कर रहा हूँ उसके अंदर id इक्वल्स टू 1 डाल दिया और यहाँ पर 2 डालना है, वहां पर कोई इमेज ऐसे कुछ करके कोई एक्सेस ऐसे एसक्यूएल इसका पेलोड डाल दिया, राइट। सो दिस इज व्हाट कम्स अंडर एचटीटीपी पैरामीटर सॉल्यूशन। वैक्स का आपका बोल दिया एंड अक्रॉस सिस्टम्स का मैंने बोल दिया। बट या ओके, नाउ हाउ यू कैन टेस्ट फॉर दोस थिंग्स, अगेन मल्टीपल पैरामीटर्स भेज सकते हो उनको एंड देखो कहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है। And another very interesting angle you can get to this is that we'll get to in the VAPT end of the PPT कि जो आपके पास एरर लॉग्स है, वर्बोस लॉग्स है, अगर एप्लीकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है आपको इंटीजर आना है, आपका एरे भेज दिया, तो एरर तो वो थ्रो करेगा। अब वो एरर कहाँ थ्रो करेगा, आर यू एबल टू फाइंड समथिंग इंटरनल बिकॉज ऑफ दैट, दैट आल्सो कैन बी ट्रिगर्ड विद पैरामीटर सॉल्यूशन नोड.js के अंदर स्पेशली, जहां पर उसको एरे में कन्वर्ट करेगा। Right. So if you have an idea also about what is going on in the backend, what is the firewall, look up how it deals with this and see how you can bypass this. ठीक है, मैंने रिपोर्ट टाइटल साइड चेंज करना भूल गया, बेसिकली VAPT है, पहले वाले वेब वल्नरेबिलिटीज के बेस कर रहे थे, कोई डाउट सर? once की लेट से क्या आपका /1 है, आपने उसको /2 कर दिया, आपको एक्सेस मिल रहा है, /2 आपका डिजाइन, दैट इज व्हाट IDO is. Inside of this can be used more towards bypassing firewalls and bypassing security defenses. आपने /1/2 नहीं किया, इमेजिन आपने /1 हाइड तोड़ा, दैट इज समथिंग इन व्हिच HTTP पैरामीटर सॉल्यूशन कम्स अंडर। आप जो बोल रहे हो वो यूकेसी की API मेथड्स में यूज होता है, दिस कम्स मोर इनसाइड ऑफ द पैरामीटर एंड ऑफ इट। चालू है, चालू है। यस वो वाला DNS पॉइजनिंग बोल रहा हूँ ना, DNS पॉइजनिंग अलग लेवल पे आता है, दिस कम्स डिफरेंट लेवल। इसके अंदर क्या हो रहा है, यू आर टारगेटिंग द ओवरफ्लो, योर अटैक पैरामीटर डिफरेंट, उसके अंदर आप DNS के कैशे वगैरह को आप चेक कर रहे हो, उसके ऊपर आप अटैक कर रहे हो। इसके अंदर आप वेब एप्लीकेशन जो है, लेट्स से दैट फ्रॉम हियर इफ आई एम एबल टू सेंड, तो मेरे अंदर द URL इज द सेम बट द रीडायरेक्ट URL इज चेंज। आपका मेन जो वेबसाइट है उसके ऊपर अटैक नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, यू कैन सर्व एनीथिंग यू वांट ऑन द वेबसाइट, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। इन द ओवर का थिंग वेयर यू आर हैविंग द रीडायरेक्ट चेंज, यू विल बी सेंट टू अ न्यू URL। आप ब्राउजर देखोगे ना, आपका URL अलग है, तो आप पुराने वाले डोमेन पे नहीं आएंगे, तो आप ओरिजिनल डोमेन से नए वाले के अंदर रीडायरेक्ट करवाओगे। ठीक है, ये तो नाउ वी मूव टुवर्ड्स मोर ऑफ द VAPT एंड ये चीजें बहुत इजी से मिल जाएंगे, आपका रिपोर्ट भर जाएगा इससे बहुत इजी तरीके से, राइट। मोस्ट ऑफ देम आल्सो हैपन इन लो लेवल, दे आर एक्चुअली सेकेंडरी डिफेंस इन डेप्थ के लिए पता है, किसी नहीं पता है डिफेंस इन डेप्थ। बेसिकली 1 लेयर ऑफ डिफेंस से बेटर ये है कि आप मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफेंस रखो, ठीक है। एक्सेसेस को डिफेंड करने के लिए क्या करोगे, पहले फायरवॉल लगा दोगे, प्लस यूजर वैलिडेशन कर दोगे, प्लस CSP करने की चीजें वो आप अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, which will prevent script from running on the road, ठीक है। Now this is where missing HTTP headers comes into play। आपके पास एक headers का एक लिस्ट होता है, वो आपकी साइट पे नहीं है, that is something that you can report from your end। इसको स्कैन करने के लिए कितना इजी है, Mozilla का वहां पर मैंने एक लिंक डाला है, वहां पर जाके you can just put the domain का जिस डोमेन वहां पर डाल सकते हो, and what will happen is that it will show you a score, what is missing, what is not missing। अब ये आप बोले यहाँ पर ये कहाँ पर काम आता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है साइबर सिक्योरिटी का इंश्योरेंस आता है, साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस के लिए आपको सम अमाउंट ऑफ पेमेंट देना पड़ता है। अब वो अपना भी ड्यू डिलिजेंस करेंगे, एग्जाम्पल जब आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जा रहे हो तभी आपका जो कुछ तो फिटनेस टेस्ट वगैरह करेंगे, सेम वो लोग वेबसाइट का करते हैं। अब वो लोग PT तो फुल फ्लेजेड PT तो नहीं करेंगे आपके वेबसाइट के ऊपर, दे रन स्कैम्स लाइक दिस। एंड ये चीजें जब इंश्योरेंस में आते हैं, साइबर इंश्योरेंस में, तो दिस विल लीड टू योर प्रीमियम गोइंग अप। दिस फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंडपॉइंट, so when you present it, this will be presented. Point number 1. Second point is if you have a proper industry level scanner like Qualys वगैरह अगर है, ये डिटेक्ट करता है ये चीज।
आपका कुकी नॉट सिक्योर हुआ, HTTP ओनली नहीं हुआ, जो ऑथेंटिकेशन के कुकीज है वो HTTPS ओनली नहीं हुआ, मतलब इट शुड ओनली बी सेंड व्हेन द कनेक्शन इज सिक्योर। ये सब चीजें पिकअप होती है, ये सब चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यू हैव द मोज़िला वेबसाइट एंड सिक्योरिटी एडवांस वेबसाइट। वेबसाइट अगर आपको पब्लिक है वहां पर रन कर सकते हो। इफ यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लोग ने अंदर अपना डेटा क्लियरेंस करा है जिसके ऊपर ही पूरी चीजें चल रहे हैं, ओपन सोर्स वाला वर्जन है, डाउनलोड करके यू कैन रन इट ऑन योर सिस्टम। उससे क्या होगा, अगर कोई इंटरनल वेबसाइट है जो खाली आपके नेटवर्क में एक्सेस हो पा रहा है, आप उसके ऊपर भी रन कर सकते हो। ठीक है। और इसके अंदर कोई एक एग्जांपल देते हैं, CSP जैसे ही मैंने बोला, एक्सेस मिटिगेट करने में थोड़ी थोड़ी हेल्प करती है। दैट विल प्रिवेंट some external website from coming and running scripts on your website as well. And yeah, that is pretty much it. We can outdate the SSL and कितने लोगों ने SSL ऐप से स्कैन मारा है? SSL apps करके there is a website. Okay. So SSL apps करके there is a website. What happens is that you can run scans उसके ऊपर, वो क्या करता है, आपका HTTPS का जो टेस्ट है वो S को वो चेक कर देता है, what the certificate is, how it is, and it gives a score on the basis of that. Usually if your website is somewhere around, उसके अंदर एक A, B वगैरह करके आपका स्कोर आएगा, B माइनस तक वो एक बार के लिए चल जाता है, उसके नीचे जाता है F3, then मस्ट हाई क्रिटिकल सिवियरिटी में आप डाल सकते हो अपने रिपोर्ट के अंदर। Right. Now these things, the previous one, this one, and all other vulnerabilities bug bounty में नहीं डाल सकते। bug bounty माइक यहाँ पर नहीं चलेगा। Why? Because bug bounty वाले people don't even put this in scope. Maximum टाइम वो exclude करते हैं, या तो ये directly exploitable नहीं होता। दोनों में से कोई चीज होती है। But when you talk towards the cyber security risk posture, these are things which will help you enhance your report even better. SSL apps, just like I told, test SSL ये टैली के अंदर बाइट कोड रहता है, you can try to run it on that. अभी इसके अंदर आपको मैं और एक इंटरेस्टिंग अटैक पैरामीटर बताता हूँ। Imagine that there is a database also. This depends on the organization कितना mature है। Startup में तो नहीं पता, but if you are going for a proper company or something, let's say that you are having a connection towards MS SQL, उसके अंदर भी SSL certificates आते हैं authentication के लिए। मैक्सिमम पीपल को छोड़ देते हैं, पहले वेबसाइट में हम SSL मार के चेक कर लेंगे, नहीं ईमेल भी आते हैं, वहां पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हो जब कनेक्शन व्हिच इज गोइंग इज अनएन्क्रिप्टेड, स्पेशली इफ इट इज गोइंग फ्रॉम समवेयर आउटसाइड द नेटवर्क, इट कैन बी अ वेरी गुड फाइंड। वहां पर टेस्ट SSL डॉट sh वगैरह काम आ जाएगा। Nmap भी अगर आपका पढ़ा रहेगा, उसके अंदर स्क्रिप्टिंग इंजन है, उसका भी एक स्क्रिप्ट है, वो भी आपको काम में आ जाएगा। पैनल करना है सॉफ्टवेयर वर्जन, तो बहुतों को पता है CS जितने किया है फर्स्ट या सेकंड चैप्टर का आ है। पैनल क्या है, यू आर जस्ट गेटिंग द बेसिक इंफॉर्मेशन कि क्या रन हो रहा है वहां। यूजुअली उतना फर्क नहीं पड़ता, इट विल जस्ट हेल्प यू थोड़ा सा, बट इन ऑल ऑफ दीस 3 things which you are going to do instead of organizations, definitely something that you can show, maybe somewhere around high severity में भी आप ये डाल सकते हो, depending upon the context. So all of the severities which you will have when you are going to be doing PT attacks in the organization, it depends heavily upon the context. अगर आपको ऐसे कोई यहाँ पे स्पार्स में यूज कर रहे हो, उसका तो क्रिटिकल पोजीशन नहीं पड़ता, राइट? सेम टाइम पे इफ यू पुट समथिंग लाइक दिस ऑन अ बैंकिंग वेबसाइट, वो क्रिटिकल भी आप डाल सकते। तो डिपेंड्स हेवली ऑन कंटेक्स्ट, दैट्स पॉइंट नंबर 1। सेकंड इज कहाँ पर आपको काम आ सकता है। लेट्स से दैट द सॉफ्टवेयर वर्जन इज एक्सपायर्ड और इट हैज रन आउट ऑफ सपोर्ट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, इट इज एक्सट्रीमली नाइस। एक तो वो है, सेकंड इज CVs अगर है, नॉन CVs अगर आपने सर्च किया है सॉफ्टवेयर वर्जन के लिए, अगर कुछ मिला भले ही एक्सप्लॉइटेबल ना हो, तो उसकी सिवियरिटीज को एवरेज आउट करके इसका सिवियरिटी डाल सकते हो, कोई इश्यू। ऑब्वियसली आपको also factor in how many people are using, what is the severity of the application, multiple चीजें, बट यूजुअली एवरेज करके यू कैन पुट। तो ये दो भी फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। इसको टेस्ट करने का ऑब्वियसली वर्कसूट तो है, इसके अंदर आई बिलीव पैसिव स्कैनर है, तो उसके अंदर इसमें ट्रिगर इनको टेल यू कि यहाँ पर मुझे वर्जन दिखता है। सेकंड इज व्हाटवेब करके भी एक चीज है, व्हाटवेब के थ्रू पैनल ग्राफिंग वगैरह का उतना कुछ नहीं कर सकते हो, बट अगर आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, लेट्स से कि jQuery पता है, उसका एक वर्जन 1 था, उसके अंदर क्या होता था, इफ यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू अ वेबसाइट एंड इफ इट रिटर्न्स बैक टू योर स्पेसिफिक थिंग, आपका एक्सेस ट्रिगर होता है। So you didn't even have to put an inner HTML, nothing like that. Directly response आने पर एक्सेस ट्रिगर होता था, वर्जन 1 में था।
तो अगर कोई jQuery का वेबसाइट है जो वर्जन 1 रन कर रहा है एंड इसका एक्सप्लोइट ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा if you want to search. अगर वर्जन 1 रन कर रहा है, अगर आपको WordPress से ही पता चला, you are able to maybe try to exploit this to have for your hand at least a high security one, if not critical. क्लिक जैकिंग, देखिए गेम को बताएं, हैकर में लिखा है योर फाउंड इज नॉट एलिजिबल, मतलब क्लिक जैकिंग अलाउड नहीं है. दैट इज व्हाट दे शो बिकॉज वेरी इजी टू टेस्ट, यूजुअली बग बाउंटी में नहीं गिरते, राइट? व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट, दे डोंट कंसीडर इट अ बग ऑन द वेबसाइट. But at the same point of time, if your application is critical, especially if it is public facing application, not if there is something like this, can cause an issue in your organization का posture. So this is a valid thing to put inside of your report. ठीक है? क्लिक जैकिंग फॉर दोज हू डोंट नो उसमें क्या होता है, एक यूजर इंटरफेस आपके पास है, वो आपने एक वेबसाइट के ऊपर चिपका दिया. बैकएंड में आपका एक आई फ्रेम है, आई फ्रेम के अंदर लोडिंग द प्रीवियस वेबसाइट, positioning the button properly, and ऐसे होगा कि when the user clicks on it, the click goes through your UI and goes to the backend UI. iframe वाला. इसके अंदर डिफाइन करने के लिए वापस वो सिक्योरिटी एडर्स आ रहा है, जहाँ पर वो iframe डिसेबल कर सकते, राइट? अब इसको चेक करने के लिए कैसे होगा, यू हैव द क्लिक जैकिंग टेस्टर दैट इज ओपन सोर्स एंड clickjacka.io. clickjacka.io के अंदर आगे वेबसाइट होता है, इंटरनल है, आपके पास पब्लिक एक्सेस नहीं है, यू कैन यूज द ओपन सोर्स वर्जन. ठीक है? अच्छा, ब्रोकन लिंक हाइजैकिंग, ये को बताइए, इसके बहुत ऑब्वियस मिलते भी है कोई कोई जगह. एनीवन who would want to give it a shot to explain also वो भी चलेगा. ठीक है? तो ओके, पूरा वेबसाइट को आप स्कैन कर लो, लिंक्स देखो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं. जैसा कि साइड अगर 40 हो रहा है, इंस्टाग्राम what is a bit more dangerous is that if they see कि this is an alternative website of ours to use and go, या तो legacy version का आप जगह पे होता है. We have migrated to a new website, if you still want to continue, it is eligible for good amount of trust validation is one of the big issues which happen इसके अंदर. Extreme cases में, like the legacy version, there is a chance that you can also access the cookie. क्योंकि डोमेन सेट किया है लेगेसी हम करें, अगर आपने लेगेसी वाले का डोमेन खरीद लिया, आपने सेटअप कर दिया, कोई आपके उससे नहीं रिडायरेक्ट हुआ, यू आर एबल टू गेट द वैलिड डेटा, वैलिड एक्सेस टोकन, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा. दैट इज ब्रोकन लिंक. ठीक है? इवन इन ऑर्गेनाइजेशन जब आप पोस्टर वगैरह चेक कर रहे हो, वेरी हेल्पफुल बिकॉज डिस्पाइट अगेन गोइंग मे बी समवेयर अराउंड मीडिया में तो डिपेंडिंग ऑन सिविलिटी लेगेसी में वन हाई क्रिटिकल. बट इसके अंदर क्या हो जाएगा कि एटलीस्ट यू आर एबल टू गेट सम थिंग्स सेइंग कि भाई ये इतने इश्यूज हमने फाइंड किए. क्यों? क्योंकि एक्सेस एसक्यूएल काफी टाइम नहीं मिलते. देयर आर फायरवॉल्स व्हिच आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल आर पुट इन देयर बेसिक डिफेंसेस. तो द मोस्ट प्रोबेबल थिंग्स यू आर गोइंग टू फाइंड इज, इनमें से कोई पास में मिलेंगे. इसके अलावा भी छोटे छोटे वल्नरेबिलिटीज और बग्स आपको मिल जाएंगे. बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं है उसके लिए, बग बाउंटी में नॉट एलिजिबल. ठीक है? एंड अदर इशू ऑल्सो दैट यू ऑफ्टन फाइंड ऑर्गेनाइजेशंस इज उनका बिजनेस लॉजिक. स्कैनर्स कैन नॉट कैच इट इजीली. बिजनेस लॉजिक बग्स ऑलवेज ट्राई करो. आप अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर हो, ट्राई टू गेट इट ऑन ओवरफ्लो. आइटम्स आप प्रोडक्ट ऐड करते रहो, देखो कितना इंटीजर तक जाता है. हाँ, दैट आपको बहुत के अगर आप करते रहोगे वेब सिक्योरिटी सर्टिफिकेट तो आपको मिल गए रिक्वेस्ट. ट्राई टू डू दोस थिंग्स, ट्राई टू हैव द डिफरेंट बग्स. Right, even for race conditions also, if your organization is small हो, बेचारा एक सर्वर पे चल रहा है पूरा, जिसके अंदर 2 GB रैम है, रेस कंडीशन होगी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है. स्पेशली इफ इट इज एन इंटरनल एप्लीकेशन, उसके अंदर you will be able to find it and you will be able to report. So these are those 320 bugs. You will connect with me. Along with that, I'm from Saint Roman, so we also have openings in our company. We have it for interns, freshers, and seniors. Interns and freshers, we are looking for people who have some kind of at least project experience in BAPT. अगर आपको फुल टाइम के लिए अप्लाई करना है तो वी नीड यू टू हैव प्रॉपर एक्सपीरियंस, एटलीस्ट इंटर्नशिप ऑफ 1 year और जॉब एक्सपीरियंस ऑफ 6 months. एंड इफ यू आर जस्ट अप्लाइंग फॉर द इंटर्न रोल,
there are at least some good solid projects. For senior role, if anyone here wants to apply, that is for people who have more than 2 years of experience and no GR division. So that was it from my end. Thank you so much. So guys, myself Jayesh Duri, intro दे ही दूंगा, but I want a bit of intro from you guys. So who are the professional over here? Professionals into cybersec. डोमेन बोलो, प्रोफेशनल्स हो तो एक एक. सॉक, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, एप्लीकेशन से, आईटी सपोर्ट, एपसेक एंड DevOps, data science, data analyst. Okay, just AppSec, application security. So a bit of information about myself. I am a tier 2 Batman right now, और मैंने SOC और इंसिडेंट रिस्पॉन्स अब भी कर रहा हूँ, एंड इट्स गोइंग टू बी जस्ट अ ब्रीफ. सो जो प्रोफेशनल्स है उनके लिए मे बी थोड़ा वेग होगा या फिर थोड़ा बेसिक्स होगा. ओके, एंड बिगिनर्स है उनके लिए जो मिड सेक्शन है वो थोड़ा बाउंसर जा सकता है, बिकॉज इट्स अ बिट ऑफ हाउ SOC वर्क्स, प्रोसेसिंग कैसा होता है एंड ऑल दैट. ठीक है, the topic for the day is Blue Team Unplugged, IT and OT SOC. So I will be more talking and focusing on IT SOC and then giving a brief about OT SOC. So brief about myself Jayesh Duri. You all know. जिसको पता है नहीं पता है hands up please. Repetitive members know me. Other than that नहीं पता. ठीक है. So I am jack of all trades, master of none, but better than master of one. That's how I display myself because I am into many things. I started off as a startup guy. मैंने पहले ऑडिट के लिए चालू किया. Then I started working into VA, vulnerability analysis and all that, नेसेस वगैरह रन करना. Then कंपनी ने बोला एक जगह पे ransomware हुआ है तो जाके टेस्टिंग करके आ. पता नहीं था क्या करना है, so I went up with Hitman Pro and did malware analysis with there. आगे जाके then I started working as full time SOC guy. I started working on Sekion, which is a SIM AI, partial AI SOC. So वो एक tool था. So that's about myself. And currently I am the lead for Hacks Nation Mumbai as well, as I am working in EY currently. So long time ago in the network. So what is blue teaming? Basics, a defensive hub. अभी तुम लोग ने एंट्री लिया यार यहाँ पे, तो नीचे क्वेश्चन पूछा रहेगा राइट तुम लोग को कि where you want to go, and then when you came here you just did an entry of yourself. So blue teamers are just checkers कि तुम लोग कौन हो, क्या करते हो, and how do you work in an environment. That is blue teaming. So we just check, detect, monitor and protect the businesses. That's what blue teamers do. What is SOC? It's just a unit that performs checks on every asset of the organization. जैसे कि तुम लोग यहाँ पे एंट्री लिए हो, तुम लोग को एक ऑथराइजेशन मिला है यहाँ पे आके बैठने का. If you yourself do something malicious on this ground, you will be targeted by the SOC team and you will be alerted, and then the actions will be taken accordingly. तो SOC का यही काम होता है, protect, alert, and then detect and analyze. वो जो first step है, detect and analyzation is first step, then protect, and then make a report totally, and then share it to the organization. Okay. SOC works 24/7, 365 days, investigating alerts and responding incidents. So this is just an hierarchy how SOC works. So there is a SOC manager. There are various team leads on the SOC manager level. So there are also engineers who sit on that level. There are also use case team members who sit on that level on the managerial cases. Then there is an L3 who is the SPOC for all the accounts of the SOC. For example, I am a SOC analyst L1. ठीक है, मेरे साथ में मेरे ऊपर एक बंदा रहेगा who is an L2, level 2. Then L3. L3 will be responsible for whatever we are doing in our daily lives. For example, एक alert आया, let's just say a login failure. अभी अपन तालाकुंची में, so let's say तालाकुंची is client of SOC और हम तालाकुंची के सारे डिवाइसेस मॉनिटर कर रहे हैं. ओके, एक लॉगिन फेलियर का अलर्ट आया. What an analyst will do is
ओके अलर्ट आया, ठीक है, मैं एनालाइज करता हूँ, डिटेल्स बनाता हूँ और वो मैं भेजता हूँ. वो डिटेल्स मैं L2 को भेजूंगा. द L2 विल रेज अ केस फॉर इट एंड देन दे विल मेक अ टिकट एंड देन शेयर इट विद द क्लाइंट जो तालाकुंची है. ओके, तालाकुंची विल डू ऑन दिस स्टेज, वो एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम को बिठाएंगे एंड दे विल डू द एनालाइजेशन कि ये लॉगिन फेलियर क्यों आया था, किस वजह से आया था और कौन सा यूजर था जो ब्रूट फोर्स करने को ट्राई कर रहा था और एल्स ट्राई टू गेन एन अनऑथराइज्ड एक्सेस. ओके, तो ये वो काम करेंगे. इफ तालाकुंची सेज द यूजर इज नॉट आवर्स, we need a full report of what's happening inside our organization, then the case will come back to the L2, it will be raised to the L3 team and they will sit and analyze everything that's going on in the organization 24/7. एक एक कोरिलेट करेंगे, कोरिलेशन गोज ऑन. लॉगिन फेलियर क्यों होता है, किसी ने गलत पासवर्ड डाला, ओके, किसी ने ब्रूट फोर्स करने को ट्राई किया, या फिर समवन इज ऑलरेडी इनसाइड द एनवायरनमेंट डूइंग द लैटरल मूवमेंट. फॉर दैट रीजन L3 will do all the analysis and then share a report again. So these are the roles and responsibilities of L1, L2 and L3 जो मैंने अभी just करके बताया. Fine, everyone with me right now? No one sleeping, right? आयुष्या का सेशन बहुत आराम से गया था. Okay, so additional information about SOC managers and what they do in their lives. They are the stakeholders. Okay. तो अगर कुछ भी फटता है क्लाइंट पे, पहली गाली सॉक मैनेजर को पड़ती है. ओके, दे हैव टू हैंडल एवरीथिंग, ऑल द स्ट्रेस अबाउट हाउ एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम इज वर्किंग, इज L1 वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, इज एनालाइजेशन गोइंग ऑन प्रॉपरली और नॉट, कहीं पे यूज केस का नीड है या नहीं है, डिटेक्शन रूल्स आर सेट प्रॉपरली और नॉट, दे लुक आउट. देन दे ऑल्सो assess tools and also have the training resources which we guys give. So example, there is an L1 me, तो मेरे को एक सर्टिफिकेशन करना है to excel my skills. Of course I want to get into threat intel. Then what SOC manager will do is he will provide training accordingly. जो भी ट्रेनिंग अवेलेबल होगी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चालू करेंगे, उसके हिसाब से हम अपना स्किल्स इंप्रूव करेंगे एंड देन न्यू पीपल कैन कम इन ऑन आवर प्लेस, वी विल एक्सेल. वैसा. ओके, सो मैंने जो सिम इंजीनियर के बारे में बोला था, व्हाट डू दीज गाइज डू? These guys are variations of people. So SIM engineers में जो होते हैं जो SIM के ऊपर वर्क करते हैं, the coders. Then there are the use case people जो इसके backend में एक code line set of rules लिखते हैं जिसके ऊपर से triggering होती है alerts की. Okay? Suppose they write a set of 3 rules. Login failure count. Login fail हुआ. Trigger set which is 3 times अगर failure हुआ तो alert होना चाहिए, 4 टाइम्स सेट हुआ तो अलर्ट होना चाहिए, एंड अगर 10 टाइम्स हुआ तो लॉकआउट होना चाहिए. वैसे कुछ रूल्स सेट करते हैं. ओके, दीज गाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यूज केसेस, रूल्स एंड देन इवन टेस्टिंग द यूज केसेस इन द बैक एंड सिमुलेशन टाइप्स. ओके, मोटा मोटा बेसिक नेटवर्क इंफ्रा जो बिगिनर्स है उनको आइडिया आने के लिए ये डाला है यहाँ पे. सो हाउ द नेटवर्क इंफ्रा फ्लोज इज, आई जस्ट गो देयर. So you are in the outside network. Suppose we all are right now. We are in the outside network. We want to get into तालाकुंची employee list जो यहाँ पे बैठे सब. So here we are into this network. Okay, right now every one of us in this network. तालाकुंची के servers are this. Okay, and then there is one guy who is coming from outside. Example, जैसे अपन कोई भी आए, that guy wants to communicate inside. तो कोई मेल भेज रहा है या जो भी कम्युनिकेशन है, he will go from outside, he will go to the mail server. अगर मेल भेजना है तो go to the mail server, then वापस से नीचे आएगा, लोड बैलेंसर पे जाएगा, कोर स्विच से रिडायरेक्ट होके वापस नीचे आएगा नेटवर्क में. There are many things on this network. किसी को कुछ डाउट है up till now? No, all clear? Okay. So there is many portions in this. So one is IDS IPS जो अभी integrated आता है NewGen firewalls में. So the level 3 firewalls, the NewGen firewalls already include IDS and IPS inbuilt in them. Then there is a DMZ network which works as a two-way firewall for internal applications. ठीक है, तो जो वेब सर्वर और मेल सर्वर्स है और जो भी एप्लीकेशन सर्वर्स है, that will be inside a DMZ network. So वहाँ पे जो DMZ लिखा है, I'll explain it later on डेप्थ में.
Fine? Okay. Fine. मोटा मोटा सर्वर ऐसा दिखता है. जिसको सर्वर रूम में एंट्री नहीं मिलती, प्लीज हैव अ लुक एट दिस. कोई कंप्यूटर नहीं रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं ऑफ कोर्स, दैट इज अ लैपटॉप सर्वर को रिप्लेस करने के लिए, बट मोस्टली बिग टेक कंपनीज हैव दिस सर्वर्स. दिस इज व्हाट राउटर्स लुक लाइक इनसाइड द कंपनीज. अपने जो यहाँ पे लगे दैट्स एक्सेस पॉइंट्स, दीज आर द राउटर्स. ओके, दिस आर द स्विचेस. सो ऐसे दिखते हैं. सो मोस्टली इफ यू गो इनटू द कंपनीज ये लगे हुए दिखेंगे आपको. ठीक है. So this is completely removed. This was 2 years back when I started working into SOC. ये निकल गया था. So this is integrated into the new firewalls. So DMZ, yeah. So यहाँ पे बताने वाला था. So for example, you guys are here trying to enter into an application जो यहाँ पे है. ठीक है. तुम लोग को access मिलता है. There is one firewall which checks you अगर तुमको access है या नहीं है, and then allows you over here. तुम लोग इसी पेज पे रहते हो. फॉर एग्जाम्पल यू एक्सेस Amazon, यू गो फ्रॉम ईयर टू ईयर, Amazon का लिंक हिट होगा, तुमको Amazon का पेज लोड होगा विच इज अ वेब पेज. ओके, एंड देन दैट वेब पेज विल लोड. वॉट एवर यू क्लिक विल गो इन टू द बैक एंड, जस्ट चेक एंड कम बैक टू योर फायरवॉल, जो भी रहेगा. ठीक है, वो बस चेक करके भेजेगा कि क्या तुम लोग ने क्या क्या किया है. ओके, और फिर तुम लोग का वेब पेज में वो अलग अलग पेजेस लोड होंगे, तुम लोग ऑर्डर प्लेस कर पाओगे एंड ऑल दैट थिंग्स. नाउ सपोज आई एम एन अटैकर एंड DMZ exists. I want to take over Amazon. What I will have to do is I will have to break this firewall, which is easy because it is external facing. I will bypass this, I will go here, but because this is a DMZ setup, I won't be able to access the internal firewall of the company. मुझे लॉक किया जाएगा and I won't be able to access the internal databases. That is how demilitarized zone works. Two-way firewalls. Fine. So SOC tools and technologies, whatever we guys use currently. SIEM, EDR, threat intel platforms, file integrity management for servers and stuff. Then privilege access management to access the VDIs, different servers, I'll say Azure systems and etc. Then we have WAF and IPS IDS. WAFs are for applications set, जो application servers रहते हैं उसके ऊपर WAFs को set किया जाता है so that you know applications को harm ना हो. So all the checks are set into the WAF. So if an attacker tries to compromise a application server, so ये WAF जो होता है वो protect करेगा. And then there is newly introduced AI, which we will talk about it later on. So SIM, Security Information Management, which was very first introduced. Then there was SIEM, which was Security Event Management. तो ये दोनों चीज़ों को combine करके then they made out SIEM, which is Security Information Event Management Tool. Basically garbage in garbage out. जो भी तुम लोग daily basis पे activities करते हो on your laptops or on your servers are gathered into the SIEM. वो गार्बेज पूरे दिन का अंदर जाता है, सारे लॉग्स, इवेंट लॉग्स, सिक्योरिटी लॉग्स, ऑडिट लॉग्स, जो भी है सारे एनालाइज करने के लिए SIEM के अंदर पुट किए जाते हैं और फिर वो कोरिलेट होता है धीरे धीरे. सो द स्टोरेज डिपेंड्स ऑन ऑडिट पर्सपेक्टिव. इफ आई से 365 डेज रखना ही पड़ेगा, बट सम पीपल डू नॉट हैव द बैंडविड्थ, कंपनीज के पास पैसा नहीं होता है, तो दे कीप इट फॉर 180 days or 90 days respectively. So how SIEM functions is collection, aggregation, parsing, then normalization, फिर categorization, indexing, enrichment and indexing works bidirectionally. Okay, so as you are indexing, enrichment also works simultaneously. And then there is storage. Storage is like hot storage and cold storage. So agent based and agentless. So one is agent based. सिम का टाइप्स है दो, कि अगर तुम लोग उसके अंदर एक एजेंट डालते हो देन इट कलेक्ट्स लॉग, एंड देन देयर इज एजेंटलेस विच इज योर होस्ट, विंडोज होस्ट्स एंड क्लाउड एनवायरमेंट्स विच आर वर्किंग ऑन द सेकंड एजेंट. ओके, फॉर एग्जांपल CrowdStrike
ईडीआर्स तुम लोग अपने डिवाइसेस में डालते हो एंड पॉइंट्स में, ओके, एंड दे गैदर द डेटा फॉर यू विच इज एजेंटलेस. एंड फॉर सर्वर्स यू रिक्वायर्ड एजेंट बेस्ड सिम. तो तुम लोग एक कनेक्शन बिल्ड करते हो nxlog और syslog और फिर उससे लॉग्स पुल करते हो. ओके, ऑल क्लियर? फ्रेशर्स डाउट्स? जा रहा है, समझ में आ रहा है? दिस इज अबाउट सिम. ओके, हाउ इट्स वर्क्स. पक्का? डाउट्स है किसी को? फाइन. Then push and pull methods, that is about aggregation. So a Windows server will always push logs from its database to SIM to collect the logs and enrich them. So and the SIM server will pull all the logs from the Windows servers, CrowdStrike EDR, then routers, switch, firewall, ये सबसे pull करेगा. ठीक है, पुश करने का काम किसका रहता है? जो एंड डिवाइसेस रहे उनका. Then there is passing. सो जो मैंने बताया, व्हेन यू गाइस कम इन, एक एक इन्फॉर्मेशन चेक होती है. सो दैट्स अबाउट इट. सो देर इज, लेट्स जस्ट से एन एग्जांपल इज ऑलरेडी गिवन, एग्जांपल लॉग. सो द लॉग इज एप्लीकेशन सर्वर के लिए. सो वो जो लॉग है, ऐसे बहुत सारे लॉग्स तुम लोग को दिखेंगे डेली बेसिस पे. सो उसको पार्स करने के बाद तुम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिख रही है? होस्ट क्या है? ऐप सर्वर. प्रोसेस क्या है? SSHD, दैट इज जस्ट टेकिंग एन SSH ओवर पोर्ट 22. देन सोर्स यूजर क्या है? आईकास्ट करके कोई यूजर होगा, उसने ट्राई किया एक्सेस करने को. एंड देन देयर इज अ सोर्स IP गिवन एंड द पोर्ट. ठीक है, सो मे बी पोर्ट 22 सेट नहीं है तो यहाँ पे वो लोग ने डिफरेंट पोर्ट सेट करके रखा है. सो डिफॉल्ट पोर्ट इज पोर्ट 22. इफ नॉट देन दे सेट अ मैनुअल पोर्ट डिफरेंटली टू एक्सेस द वेबसाइट्स एंड एवरीथिंग इंटरनली. तो वो लोग ने मैनुअल पोर्ट सेट किया और फिर एक सोर्स IP दी. सो उसके बेसिस पे वो डिटेक्शन आया. अभी उसको नॉर्मलाइज और कैटेगराइज कैसे करेंगे? बिकॉज दिस इज वेरी रॉ लॉग. स्टिल पीपल वोंट अंडरस्टैंड. अगर मैं फेंक दूंगा ये रॉ लॉग तुम लोग पे, तुम लोग को सोचने लगेगा ना भाई कैसे करूंगा एनालिसिस को, किधर ढूंढने जाऊंगा. सो देन देयर इज नॉर्मलाइजेशन एंड कैटेगराइजेशन जो और इन्फॉर्मेशन रिवील करते हैं कि ऑथेंटिकेशन कौन से बेसिस पे हुआ था. लॉगिन हुआ था, देन SSH लॉगिन हुआ था. ओके, देन प्रोसेस क्या थी, उसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन रिवील होती है. सो मोस्टली यू गेट इज CSV या फिर TXT फाइल मिलता है रॉ लॉग के टाइम पे. बट व्हेन यू गेट एन अलर्ट फ्रॉम अ SOC टीम, दे गिव यू मस्ट ऐसा टैबुलर फॉर्मेट, यहाँ पे कंटेंट्स रहता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है. बैकग्राउंड वर्किंग इज दिस. ओके, तो वो लोग ये एनालाइज करके तुम लोग को डेटा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बेचते हैं. हा, जस्ट अ फंकी लिटिल मीम. देन एनरिचमेंट इज अगेन सेम कि और क्या क्या है उस फ्लो में. सो हाउ इट एनरिचेस अ लॉग. सो आईकास्ट यूजर और क्या मिला उसके बारे में? ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, उसके ऊपर IP इंटरनल है तो इट इज अलाउड. सो दिस इज अ फॉल्स पॉजिटिव. ओके, देन कोरिलेशन किसके ऊपर होता है? सो लाइक आई सेड देयर आर 3 टियर्स ऑफ रूल सेट. सो एक टियर पे जाएगा एक्शन 1, एक थ्रेशोल्ड होगी कि तुम लोग ने एंट्री लिया. ओके, आई विल चेक the guy has just logged in into his account or he has just failed once. Then अगर threshold 2 पे जाएगा कि अगर एक बार हुआ, चलो मैं रूल रखता हूँ वैसे ही, that log is still active and the guy again enters 2-3 बार पासवर्ड गलत, तो फिर threshold 3 पे हिट होगा. This will just trigger an activity. Threshold 3 पे an activity will be triggered into SIM rule set के basis पे. ठीक है? Now if a person tries to brute force that account or tries to log in more than 10 to 15 times in 60 seconds, then the alert will be triggered for the third time and it will be an alert excessive login failure or a brute force attempt. Okay, and फिर वो alert बन के create होके SOC team client को भेज देगा कि भाई तुम्हारे पास कोई ऐसा activity कर रहा है, please check. So the IR people will check this. Okay. So this is about indexing and storage. So storage they can keep hot and cold storage और indexer एक अलग रहता है. So I don't know about QRadar and Splunk, but I know about logarithm. Anyone has used logarithm over here? कोई किया है? Logarithm SIM use? No. Sequon? No. So Sequon has a different indexer and a logarithm has a different indexer. उनका एक indexing side अलग रहता है जहाँ पे सारे logs accumulate होके कंटिन्यू एनरिच और कैटेगराइज होते हैं, और फिर स्टोरेज अलग रहता है जहाँ पे तुम लोग को एक डैशबोर्ड में नॉर्मल लॉग्स दिखते हैं और वो स्टोर होते हैं कंटिन्यूस बेसिस.
So indexer and storage is different. In Splunk and Curator, both are same. Okay. So this is a architecture for Sekion SIM. This was a cloud based. Okay. तो इसका architecture is the server is set into the cloud and उसका एक dashboard का web link मिलता था हम लोग को, which is of course VPN connectivity. So this is SIM port. फिर उसका setup कैसे किया था? एक firewall रखा था client side पे, then एक server या फिर device होगा और उसके ports है जो UDP में रखे. Anyone why UDP is set? Port UDP की use करते हैं, UDP की use करते हैं. Fast and unidirectional and connectionless. What if I use TCP over here? Access दे दिया तो what will be the issue if I use TCP protocol using to throw the client server? मतलब जो भी कलेक्शन करना है मुझे, अगर मैं TCP यूज करता तो क्या प्रॉब्लम होगा? डेटा लॉस. मुझे जो लॉग्स आने हैं वो एक लाइन में आएंगे, एक एक लाइन में आएगा. उससे क्या होगा? बैंडविड्थ पे इशू आएगा. सो इफ 50 Mbps रखा है मैंने, द लॉग्स नीड टू फ्लो एट 10 Mbps एंड अबव. अगर मैंने बैंडविड्थ ही 50 रखा है कंपनी के एक ISP पे, तो बैंडविड्थ से लॉग्स फ्लो होने को बहुत टाइम लगेगा और वो क्यू में जाएगा, एक एक करके लॉग भेजेगा. एंड व्हाट इज सॉक अबाउट? रियल टाइम डिटेक्शन. एक लॉग आया, उसको डिटेक्ट किया, विद इन 5 मिनट्स ट्रिगर करके भेजा अलर्ट. दैट्स रियल टाइम डिटेक्शन, राइट? अगर एक एक लॉग 15-15 मिनट में जाएगा तो रियल टाइम डिटेक्शन विल बी नॉट रियल टाइम डिटेक्शन. इट विल हैव अ लूप होल कि भाई तुम लोग लेट अलर्ट भेज रहे हो, हमारा एक्टिविटी हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, कंपनी डूब गई, एंड देन अलर्ट आ रहा है. तो किसी ने अगर 0 डे मार दिया या फिर किसी ने हैक कर लिया इंटरनल सिस्टम्स को, सर्वर्स को, देन this is useless if I don't use UDP or TCP. No, it won't. The packets continuously flow and then they gather on the client server which is set on the SIM, जो pull करता है सारे logs. So it will continuously pull all the logs. It is directional, right? एक pipeline पे जा रहा है, lost नहीं हो सकता. राउटिंग सेट रहता है. सो इन बेसिकली टू आंसर योर क्वेश्चन, जब मैं फायरवॉल पे रूल सेट करता हूँ ना, सो मैंने वहाँ पे राउटिंग भी सेट किया. सो इवन नॉट जस्ट दैट फायरवॉल इज देयर, दैट ऑल्सो हैज ऑल द लॉग्स. जो भी तुम लोग ने रूल सेट किया ना, सपोज मेरे को क्लाइंट सर्वर पे एक भेजना है, जो सिम कलेक्टर है, जो कलेक्टर मशीन है, उसके ऊपर अगर मुझे लॉग्स फेंकने हैं तो मैं एक रूल सेट करके रखूंगा कि राउटिंग किस पॉइंट से होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई सर्वर इज इनसाइड द कंप्यूटर, अपना एनवायरमेंट, कंपनी के एनवायरमेंट में रखा है मैंने सर्वर को, उस सर्वर को मैं फायरवॉल पे रूल सेट करूंगा, द ट्रैफिक शुड ओनली फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर फॉर ऑल द डिवाइसेस. तो मैं पोर्ट सेट करूंगा, उसका परफेक्ट अलग एक पोर्ट रखेंगे उसके लिए, एक डिफरेंट पोर्ट है. जैसे यहाँ पे रखा है 514 UDP पोर्ट, तो मैं कुछ और पोर्ट डिफाइन करके रखूंगा, वही पोर्ट से ट्रैफिक फ्लो होगा, अदर देन दैट नहीं होगा. सो देयर इज नो हॉपिंग इन बिटवीन. इवन राउटिंग भी होगा वो उसी पोर्ट से होगा, तो डेटा लॉस नहीं होगा. हाँ, तो वो उसकी वजह से उसके ऊपर ये भी सेट करते हैं, जो होता है वो IAS जो सर्वर्स रहते हैं ना, जो टाइम सर्वर रहता है, वो भी सेट करते हैं. तो उसके बेसिस पे वो लॉग्स उस टाइम फ्रेम में उठाता है. हाँ, तो फिर सॉर्ट हो जाता है इंडेक्सिंग के टाइम पे कि ये टाइम पे ये लॉग आया था, ये टाइम पे ये लॉग आया था, एंड फिर एनरिच करके उस लॉग को उस परफेक्ट वे में डालते हैं. सो व्हेन यू चेक ऑन डैशबोर्ड ना, तुम लोग रिफ्रेश करते रहोगे, तुम लोग को एक लॉग ऊपर नीचे दिखेगा, बट व्हेन यू गेट होल रिपोर्ट तो एक एक करके सेग्रीगेट होके आता है अलर्ट्स. तो वो बैकएंड में एनरिचमेंट में वर्क होता है. एनी मोर डाउट्स इसके ऊपर? दिस इज द क्यूरेटर का, लाइक आई सेड. सो इधर अलग स्ट्रक्चर है, थोड़ा प्रोसेसिंग और डेटा कलेक्शन पूरा एक साथ होता है. लाइक आई सेड, देयर इज नो डिफरेंट इंडेक्सर और एनीथिंग, पूरा एक साथ सेट किया जाता है और फिर वो लोग अपने आप उससे लॉग्स लेते हैं. So this is for QRadar. Yeah, that's what I explained.
So list of SIM tools that are currently more active in our world. इससे ज़्यादा है, but these are the most active ones. There is IBM QRadar, which is of course #1 industry leading. Then there is Splunk. Sekion is the new gen AI based tool. ठीक है, so they have literally updated their database and all. वो Docker base पे काम करता है, so the alerts trigger on Docker base. Then there is Alien Vault. SolarWinds is actually a network monitoring tool, okay, but banks are like हमारे पास इतना बजट नहीं है क्योंकि हम सब बजट पैसा छापने में लगा रहे हैं. So they use SolarWinds at their end to monitor their whole infrastructure together. तो SolarWinds पे वो लोग Sysmon भी लगा के Syslog लेके सब कुछ monitor करते हैं on SolarWinds. So that is why I have added it over here. Then there is ArcSight and Wazoo. Wazoo is the open source. So Wazoo का combination they even use it with Sekion, and they even use that Wazoo tool with ElkStack, Elasticsearch. ठीक है, Kibana Elasticsearch का combination बना के Wazoo का use करते हैं to get more of a new gen SOC. So IT flow and infra. There is an IT team, support guys. You guys are here. There is a generic IT team that sits and checks for the overall organization. जो भी activity हो रहा है वो IT करते हैं. Then there is NOC and SOC, Network Operation Center and Security Operation Center. नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर के अंदर डिफरेंट चीज़ें आती है, जैसे कि छोटे छोटे बल्ब्स, योर AC, योर रेफ्रिजरेटर्स, योर लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, ये सब नॉक ऑपरेट करता है. ठीक है. देन सॉक ऑपरेट्स योर राउटर्स, स्विचेस, PLCs जो भी रहेंगे बेसिक्स, एंड देन योर सर्वर्स, लिनक्स सर्वर्स, विंडोज, फायरवॉल्स, ओवरऑल जो भी है, वैफ्स, DMZ नेटवर्क्स. देन एडिशनल जो भी तुम लोग सॉफ्टवेयर चलाते हो वो भी मॉनिटर करेंगे, जैसे HRMS पोर्टल एग्जांपल, तुमने कोई और सॉफ्टवेयर बनाया तो वो भी इंटीग्रेट कर देंगे, तो उसके सारे लॉग्स सॉक देखता है. ठीक है. देन देयर इज एन IR विच ऑफ कोर्स सिट्स अबव सॉक, विच चेक फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम करना. सॉक ने जो भेजा है वो सही है गलत है, मुझे और क्या चाहिए सॉक से, वो सब काम करके देखना. देन इफ एन इंसिडेंट हैपेंस देयर इज डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड थ्रेट इंटेल. these guys in a big organization they exist, otherwise third party से hire करके ये लोग को लेते हैं, digital forensic people and then threat intel guys. Okay. Then there is VAPT which is also as a service, जो year on year तुम लोग VAPT करते हो to just keep your system safe, कि कुछ फट ना जाए हमारे सिस्टम में, वो देखने के लिए. For that there is a VAPT. Then VAPT में भी various types होते हैं. I will say there is network PT, then application, basic softwares, then even your config review वगैरह जो भी है वो भी VAPT में ही आता है. And then I'll say red teaming जो पार्ट होता है, जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करना पड़ता है एक्सटर्नली, वो भी रेड टीमिंग जो VAPT के अंदर ही आता है. ठीक है. देन देयर इज पॉलिसी एंड ऑडिट. दिस गाइस कम टुगेदर. पॉलिसी वाले लोग वो होते हैं जो दिन भर कंप्यूटर के अंदर ऐसे बैठे हुए रहते हैं, और तुम लोग जो एप्लीकेशन में बड़ी सी एक पॉलिसी बनाते हो, देखते हो जब तुम लोग इंस्टॉल करते हो एक पॉलिसी आती है जो तुम लोग ऐसे बिना सोचे समझे ऐसे स्क्रॉल करके ओके क्लिक करते हो, राइट गाइस? प्लीज रीड समटाइम्स दैट पॉलिसी. बहुत क्लॉजेस छुपा के रखते हैं ये लोग, वेरी स्मार्ट पीपल. ठीक है. इसके अंदर अभी रिसेंटली आई हैव रेड दिस पॉलिसी आफ्टर द DPDP एक्ट दैट वी कैन स्टोर योर डेटा एंड यूज इट फॉर आवर पर्पस, एनरिचमेंट पर्पस. न्यू एप्लीकेशंस में ये लाइन ऐड किया है, एंड this comes under DPDP compliance. So if you want, as a consent, if you want to share your data, please click OK and then start using the application. And अगर वो एक word नहीं होगा, this doesn't come under DPDP Act or we are not having DPDP Act for ours, तो application install करके use मत करना, please. You are just giving away your personal data to the company, जो लोग तुम लोग को compensate भी नहीं करेंगे तुम लोग केस करने के बाद. ठीक है. Then there is audit. Audit year on year carry होता है. Why audit is conducted is to check if all the systems are working fine. एक flow set है, तुम लोग के पास आलतू फालतू चीज़ें नहीं है. ठीक है. एग्जाम्पल लेके बात करें तो let's just say I am an auditor. I come to you. तुम लोग का एक ऑडिट कंडक्ट कराना है ISO 27001. What I will check first is in round 1 of audit,
आई विल चेक फॉर ऑल द पॉलिसीज दैट आर देयर, ठीक है, जो भी तुम लोग ने पॉलिसी बनाई है वो मैं चेक करूंगा। ओके, तुम लोग ने 12-13 पॉलिसीज बनाई है, ठीक है, व्हाट दोस पॉलिसीज आर, रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या है, आईटी सर्विस मैनेजमेंट के लिए क्या है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए तुम लोग ने क्या रखा है, फिर तुम लोग यूजर ऑनबोर्डिंग डी बोर्डिंग के लिए क्या रखते हो, ये सबकी एक प्रोसेस और पॉलिसी रहती है, ठीक है। देन देर आर प्रोसीजर्स, कि अगर तुम लोग के पास अटैक होता है तो तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारा डेटाबेस किधर स्टोर्ड है, तुम लोग कैसे एक्ट करते हो, तुम लोग पॉलिसीज कैसे बनाते हो, ये सब मैं चेक करूँगा। ओके, एंड आफ्टर दैट आई विल से कि ठीक है ये तो हो गया, अभी तुम लोग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम लोग क्या करते हो, वीएपीटी करते हो। ओके, शो मी द वीएपीटी रिपोर्ट। तो अगर पैच किया है नहीं किया है उसके ऊपर, अगर नहीं किया होगा देन आई विल पुट एन एनसी नॉन कंप्लायंस डाल दूंगा उसके ऊपर कि तुम लोग कंप्लाइंट नहीं हो, प्लीज कंप्लीट दिस एक्टिविटी एंड देन अगेन अप्रोच फॉर द ऑडिट। और अगर सब चेक्स प्रॉपर गए देन ओनली आई विल अलाउ। एक बेस्ट एग्जांपल व्हाट ऑडिटर्स यूजुअली डोंट चेक बट दे डू, तुम लोग के लैपटॉप्स में पता है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में यू आर नॉट अलाउड टू यूज यूएसबी, पता है ना, फ्रेशर्स को नहीं पता होगा, तो यूएसबी इंसर्ट करना मना है। दिस ऑडिटर्स आर बहुत वेल्ले पीपल, ठीक है, ये लोग अपने जेब में ऐसा यूएसबी लेके घूमते हैं। तो पहला चेक तो ये लोग ये करते हैं यूएसबी लेके घूमने के टाइम पे कि एट द एंट्री लेवल वॉचमैन ने मेरे से चेक किया कि नहीं यूएसबी मैंने लिया है कि नहीं, इसके ऊपर भी मैं एनसी डालूंगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने यूएसबी कनेक्ट किया एक लैपटॉप में और वो कनेक्ट होकर डिटेक्ट हो गया तो उसके ऊपर दूसरा फाइंडिंग डालूंगा। और फिर तीसरा ये डालूंगा, ये तो बहुत क्रिटिकल है, मैंने वायरस घुसा दिया तो, ठीक है। दिस इज हाउ ऑडिटर्स थिंक एंड दे वर्क। सो फर्स्ट वो एंट्री होती है ना वहाँ पे, अभी यहाँ पे तो नहीं हुआ है बट इन प्लांट्स और व्हेन यू गो इनटू द वेरी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स, स्टार्टिंग में तुम्हारा बैग चेक होता है, दैट इज अ प्रोटोकॉल। तुम्हारा बैग स्कैन होता है, उसके अंदर यूएसबी मिला तो वो नोट किया जाता है कि ये तुम्हारा यूएसबी है, यू कैन टेक इट ऑफ कोर्स बट यू कैन नॉट यूज इट एनीवेयर। तुम्हारा एसेट्स डिटेक्ट होता है तो वो एसेट लिखते हैं क्योंकि एक लैपटॉप है, एक माउस है, एक चार्जर है, ये सब एंट्री पॉइंट पे लिखा जाता है, इसका एक रजिस्टर रखना पड़ता है। एंड दिस ऑल्सो ऑडिटर्स डू चेक, फॉल्स अंडर ISO 27001, ठीक है। एंड इवन और एक एग्जांपल, टू कॉन्ट्रैक्टर्स जो ग्राउंड स्टाफ होता है, ओके, तो ग्राउंड स्टाफ क्या करता है रेगुलर बेसिस पे, क्लीनिंग, वर्किंग, गिविंग यू चाय पानी, ठीक है। डू यू गाइज नो ग्राउंड स्टाफ का बैकग्राउंड चेक किया जाना चाहिए, इफ दैट इज ऑल्सो नॉट डन ऑडिटर्स डू फ्लैग ऑन दैट, ये सब चीजें भी चेक करते हैं। सो ऑडिटिंग इज अबाउट ऑल दैट, कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रैक, ठीक है। देन देयर इज रिस्क मैनेजमेंट, दीज गाइज आर जस्ट अबाउट ऑडिटर्स, बोल सकते हैं इन हाउस ऑडिटर्स इनको, ये लोग अपने कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर रखने में बिलीव करते हैं। बजटिंग एंड ऑल कम्स फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। एंड देन देयर इज DR, डिजास्टर रिकवरी, okay, for example my office is in Talakunchi, is in Andheri, my DC is here, data center मेरे पास इधर ही है बट इधर नहीं है, सपोज मैंने एरोली में रखा है मेरा डेटा सेंटर और मैं वहां से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ओके। सो डेटा सेंटर तो है, सपोज एरोली में बाढ़ आ गई, नेटवर्क फेलियर हो गया, लाइट चली गई, कुछ भी, डेटा सेंटर फेल होगा आफ्टर 24 आवर्स ऑफ कोर्स, बट कुछ हो गया क्रिटिकल तो सब बंद हो जाएगा। For that purpose, DR is established in some other location or in some other country. For example, I can keep DR in Bangalore, I can keep DR in Delhi, I can keep DR in Rajasthan, Jaipur, anywhere. और अगर चारों लोकेशन पे हो गया तो I can even keep a DR on a cloud. ठीक है, cloud is basically in some other country on their servers. Okay, so that is why DR is important. And then there is BCP, Business Continuity Plan, जिसके अंदर जो ऊपर से लेके DR तक का जो प्लान है वो सब एस्टेब्लिश किया जाता है और उसका बजट डिसाइडेड रहता है, जो बिजनेस कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए। एग्जांपल, अमेजोन का सर्वर्स अगर क्रैश होता है, रिसेंटली जो ईरान US कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बीच में अमेजोन के सर्वर्स पे अटैक हुआ था, राइट। सो देयर सर्विसेज वर लिटिल बिट डाउन बट दे ऑल द सर्विसेज वर्किंग फाइन, थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था उसके बाद वापस चालू हो गया, व्हाई, बिकॉज देयर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान वाज इन प्लेस, वो लोग ने DR सर्वर्स एक्टिवेट किए एंड ऑल द ट्रैफिक वाज रीराउटेड फ्रॉम देयर, ओके। सो उसके लिए BCP DR इज इंपॉर्टेंट। हाँ, दिस इज अ डेमो ऑफ एन अलर्ट, इट्स अ 0-day malware,
Of course, this is a false positive when I analyzed it. This is 2 years ago का alert, so it won't matter. So I don't know if it's visible. Is it visible? Let me check. क्या मैं इसको zoom कर सकता हूँ? Okay, I can zoom in. So ये डैशबोर्ड पे था. So if you see this strip over here, जो रेड और ग्रीनिश ब्लू कलर की स्ट्रिप दिख रही है, राइट, दैट इज माइट्रे फ्रेमवर्क. उसके बेसिस पे ये अलर्ट थ्रो हुआ है. ओके, सो देयर इज अ टाइम स्टैम्प ओवर हियर. 1, देयर इज दिस अलर्ट आईडी. उस अलर्ट इवेंट के लिए एक अलर्ट आईडी जनरेट हुआ था. देन अलर्ट का टाइप क्या डिटेक्ट हुआ है वो आया था. फिर वो उसका सिवियरिटी दिया था. व्हाट इज द सिवियरिटी, मेजर ओवर हियर. एंड देन इंफॉर्मेशन पास की थी जो कि ये मैसेज है. The host XYZ is suspected to be malware infected. This host visited blacklisted site, executed network scan and exfiltration. और फिर उसका डिटेल्स दिया था आगे. ठीक है. मेजर थिंग इज इट वाज हिट ऑन सो फर्स्ट स्टेज 1 रिकॉग्निसेंस. बाकी कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ. उसके आगे जाके लैटरल मूवमेंट पे हिट हुआ. ओके, एंड देन एक्सफिल्ट्रेशन पे, मतलब डेटा शेयर किया. इसके लिए नीचे देखो अकरेंसेस आए रहेंगे. तो उसने पहले क्या किया, ब्लैकलिस्टेड साइट एक्सेस किया. इस वजह से एट दैट टाइम ब्लैकलिस्टेड साइट वाज नॉट अलाउड इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ब्लैकलिस्टेड साइट पे वो लोग ने क्या किया, रिकनेंसेस को ट्रिगर किया. उसके अंदर अलग अलग टीआई सेट्स रहते हैं, रूल सेट्स. उसके बेसिस पे वो लोग ने हिट किया रिकनेंसेस पे. फिर आईपी स्कैन पे हिट किया, तो इसलिए वो लोग ने क्या बोला, लैटरल स्कैन हो रहा है. एंड देन डेटा अपलोड. तो उसके अकरेंसेस भी लिखे हैं कि कितने हुए हैं. और सिंस इट इज ऑन नेटवर्क, इट फ्लैग्ड एज अ 0-day अलर्ट. ठीक है. दैट सेड इट वाज अ फॉल्स पॉजिटिव एट दैट टाइम, बट फिर भी. तो दिस इज हाउ सॉक पीपल वर्क एंड देन दे एनालाइज. मैं स्टार्टअप में था तो मैंने सीधा ये बंद किया था अलर्ट. आई डिडंट शेयर इट विद क्लाइंट बिकॉज आई न्यू यूजलेस था. वो लोग बवाल करते थे 0-day हो गया, तो मैंने भेजा नहीं था उनको. फाइन. सो दिस इज अ लाइफ ऑफ एन आईआर. तुम लोग पूरा दिन बस अलर्ट्स देखते हो गाइस. एनीवन हु डजंट स्लीप इज एन आईआर. सो इतना ठीक था. ओके, आई हैव ऑल्सो जस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग OT-SOC बिकॉज मेरे को क्लाइंट ने बोला कि तुझे OT भी देखना है आज से. तो आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस एज वेल. सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू फॉर पास्ट 6 months का मेहनत दैट आई हैव लर्नड अबाउट. तो बेसिक्स बताऊंगा. सो व्हाट इज एन OT-SOC? इट इज एन ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी. ठीक है. जिसको नहीं पता, OT-SOC इज अबाउट प्लांट्स, योर फैक्ट्रीज, योर मशीन फैक्ट्रीज, देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, जो भी तुम्हारे घर पे साबन वाबन बनता है ना, उसके लिए भी जो इंडस्ट्रीज काम करती है बैकएंड में, यूनिलीवर एक्सेट्रा, उनके प्लांट्स जो मॉनिटर होते हैं, OT-SOC does that. Okay. So what do we monitor in OT-SOC? That's just the basic लिखा है, SCADA, PLCs, ICS, HMIs. बट इसके अंदर और भी चीज़ें होती है बिकॉज OT-SOC डायरेक्टली कांट इंटरेक्ट विद SCADA, PLCs एक्सेट्रा. ठीक है. जो परड्यू मॉडल होता है तो उसके लेवल 2 पे ये सेट किया जाता है, लेवल 2 और लेवल 3 मैक्स आउट. ठीक है. तो उसके लिए दे इंट्रोड्यूस्ड Nutanix as a cloud server, and then some tools called SRA and all that to get all the logs into the SIM. So about OT-SOC, it is used in power plants, manufacturer, oil, gas, water treatment plants, and then what it focuses on is availability, safety and operational continuity. Anyone, why do you think SOC is important in this sector? क्या करेंगे हम? सोचो. प्रोटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर.
Exactly. So I'll give one example. Anyone who knows colonial pipeline attack? We all know US pipeline attack. So the attackers hijacked their infrastructure internally network पे और फिर oil और petrol का there was a shortage because the pipeline was disrupted, burst हो गया था और कुछ कुछ जगह पे ब्लॉक हो गया था. तो जो पूरा पाइपलाइन था जो पेट्रोल फ्लो करता था ऑयल एंड पेट्रोल वो पूरा ब्लॉक हो गया था. उसके वजह से कंपनी को अराउंड USD में करोड़ का लॉस हुआ था. ठीक है. एंड देन इवन देयर वाज स्कैर्सिटी ऑफ पेट्रोल ऑयल गैस वॉट एवर देयर वाज. उसकी वजह से डेली लाइफ पे अफेक्ट हुआ था फॉर मंथ्स. तो तुम लोग को यूजेस करने नहीं मिलता है. ओके, दैट इज द डैमेज दैट अटैकर्स कैन कॉज इन OT एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल यू गाइस ड्रिंक पैकेज मिल्क, राइट? सब लोग पैकेज्ड फूड खा रहे हैं आजकल, एवरीवन इज हैविंग इट. उसके ऊपर पता है लिखा रहता है pH वैल्यू, वो सब पैकेज पे. सपोज आई एम एन अटैकर, आई गेट इनटू द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस OT एनवायरनमेंट बिकॉज दीज आर वेरी ओल्ड लेगेसी एनवायरमेंट्स. ओके, बहुत पुराने सिस्टम्स रहते हैं, पैच भी नहीं करते ये लोग, क्योंकि अगर ये लोग पैच करने जाएंगे ना इनको करोड़ों का नुकसान होता है. तो ये लोग पैच नहीं करते. दिस कंपनीज जस्ट कीप रनिंग हाउ दे आर रनिंग. ठीक है, जब तक रैंसमवेयर ना हो तब तक चला रहा है. ठीक है, तो चलते रहते हैं. रैंसमवेयर होने के बाद फिर बैठेगा बोर्ड, फिर सब पैसा लगेगा साइबर सिक्योरिटी पे. ठीक है, बट उसके पहले सब चलते रहता है. Suppose an attacker comes into your network, hacks the system HMI, उसके ऊपर चेंजेस किए because HMIs run on Windows XP. Till date, I have seen HMIs working on Windows XP, unpatched, undetected, nothing. बस logs ingest होते हैं, but बस चल रहा है. So HMIs work on XP. अगर मैंने उसको हैक किया, उसके ऊपर जितने भी 0-day vulnerabilities है सब निकाल सकता हूँ. और फिर चेंजेस किए pH वैल्यू में. Tomorrow that milk comes at your doorstep, you drink it, and of course you die. तुम ब्लेम किसको करोगे भाई? अमूल को कि भाई तुम लोग ने दिया मुझे ये दूध. अमूल विल हैव रेपुटेशनल डैमेज, ब्रांड खराब होगा उनका, तुम लोग का लाइफ गया हो गया, तुम लोग को पैसा भी देना पड़ेगा उनको पूरा बैच मार्केट से वापस उठाना पड़ेगा और फेंकना पड़ेगा. दूध का चेक करना पड़ेगा किस किस को डिलीवर हुआ है, किधर किधर हुआ है. न्यूज में डालना पड़ेगा कि भाई हमारे पे अटैक हुआ था, प्लीज पियो मत. एवरीवन विल लूज फेथ इन दैट प्रोडक्ट. ठीक है, फॉर मंथ्स एंड एजेस. और तुम लोग यूज नहीं करोगे उस प्रोडक्ट को, कंपनी तो डूब गई भाई. ठीक है, फॉर दैट OT SOC is important to at least monitor. Yes, we cannot do much, but at least we can detect and prevent before the disaster happens. ठीक है, so at least हम लोग शट डाउन करेंगे, कुछ बोलेंगे कि बंद करो. तो that's how OT SOC works. So there is legacy systems, there is no downtime. मैनेजमेंट से भीख मांगनी पड़ती है भाई 10 मिनट का डाउन टाइम दो, हम लोग सर्वर रिबूट करेंगे, उसके अंदर पैच डालेंगे एंड सब सिस्टम्स ऑनलाइन लेके आएंगे. 5 मिनट्स. ठीक है, 5 मिनट्स का डाउन टाइम. दैट इज जस्ट रिबूट रिस्टार्ट विद द पैचेस इंस्टॉल्ड. ठीक है, दैट कॉस्ट 5 lakhs to 50 lakhs फॉर द कंपनी. 5 मिनट्स. ठीक है, उसके वजह से वो लोग देते नहीं है. देन देर इज लिमिटेड विजिबिलिटी एज वेल बिकॉज प्रोटोकॉल्स जो होते हैं बहुत पुराने. हु मॉनिटर्स मॉडबस एट दिस स्टेज? मॉडबस प्रोटोकॉल कौन मॉनिटर करता है? ओनली इन OT. ठीक है, OT एनवायरनमेंट पे जो भी वर्क हो रहा है, योर स्नाइडर इलेक्ट्रिक सिस्टम्स, तुम्हारा रॉकवेल के सिस्टम्स, जो भी है, दैट टेक्नोलॉजी इज स्टिल वर्किंग ऑन मॉडबस टेक्नोलॉजी. एंड अदर एवरीवन TCP UDP नेटवर्क IT चल रहा है. ठीक है, सो दैट इज द चैलेंज. देन डिफरेंस बिटवीन IT एंड OT SOC. डेटा सिक्योरिटी IT में इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? OT में क्या इंपॉर्टेंट है? ऑपरेशनल सेफ्टी. CIA ट्राइड पता है ना सबको? कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. सॉरी, माय बैड. रिवर्स दिस इन OT. So there is first availability, integrity and then there comes confidentiality. हमको फर्क नहीं पड़ता कॉन्फिडेंशियलिटी से, हमको पहले चाहिए अवेलेबिलिटी. I want my system running 24/7 to make more money. That's how OT people think. ठीक है, देन IT में क्या होता है? फास्ट पैचिंग. भले ही थोड़े फुद्दू होते हैं, धीरे धीरे पैच करते हैं, 1 साल लगाते हैं,
एक वनरेबिलिटी पैच करने को, बट दे डू इट, करते तो है। ओटी सॉक में आफ्टर 4 years 1 वनरेबिलिटी इज पैच्ड, ओके। एक डाउन टाइम लेंगे, उसी दिन पे सब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से सेट करेंगे और सब पैच करके डाल देंगे। दिस इज हाउ ओटी वर्क्स। देन चेंजेस वो लोग बहुत केयरफुली करते हैं बिकॉज वन चेंज कैन कॉज लाइफ, ओके। तो ओटी में चेंजेस नहीं होते इवन ऑन फायरवॉल लेवल। सो दैट्स इट। मीम्स, आई लाइक पुट मीम्स बिकॉज जेनजी एनवायरमेंट बहुत हो गई। सो फ्यूचर ऑफ ब्लू टीमिंग एंड हाउ इट विल गो ऑन। तो मोस्टली AI driven SOC is the future, but I won't say AI will take over our jobs, of course. तो मेरे को नहीं लगता AI अपनी जॉब ले सकता, because I'll say if AI analyzes and throws an alert, there is still need for an IR to sit on that level and check कि भाई ये सही है या गलत है, and then again throw it at the SOC analyst, बॉस ये गलत है, इसको फाइन ट्यून करना नीड है। Then you will put a prompt guy, फिर वापस से rules लिखोगे and then again AI will analyze it. So it is a helping hand of AI. We will work more faster with AI, that's it. Otherwise AI can't take over cyber security. No industry will like be affected because of AI. Okay. I am stating in purpose of VAPT और वो सब because मैंने सुना भी है VAPT में automation आ गया. But still your jobs are safe, VAPT guys, because you think rationally. तुम लोग हर दिन कुछ नया करते हो, तो your jobs are also not danger because of AI. Then there is automation, threat hunting, CTI, cloud security. Anyone who wants an example of CTI, how CTI guys work, I'll showcase to you. I'll showcase just basic मैं एक दूंगा because that's how I work as a CTI analyst. Then there is cloud security as well. So cloud security is basically for Azure and वो सब। तो जब भी तुम लोग, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। So there is cloud revaluation, फिर अगर एक AI या फिर एक टूल जो एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड है उसको इवेल्युएट करने के लिए भी यूज करते हैं। देन ऑडिटर्स ऑल्सो थिंक ऑन दिस बेसिस कि क्लाउड में क्या क्या जाने वाला है। फिर IT में भी आता है बिकॉज कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करनी है। सो इट इज वास्ट इन ऑल। एनी क्वेश्चंस? यस, नो? That's it from my side, guys. Okay, you can connect to me on this. Meanwhile, I'll just put up one video for you guys showing OT environment, and then I'll show you how CTIs work. Scan किया सबने? Okay. Sure thing. Now I don't know if this will have an audio or not. The Tetra Pak pilot plant is a place where Tetra Pak's customers can come and validate their products before. The audio input might be changed. Before they commercialize it. So our customers Okay, audio नहीं आ रहा है, come so here we'll to just play test this their directly. suite of formulas to take to consumer test panels, to clinical trials. Has been here in Prospered Food Manufacturing Facility. So this is an HMI जो तुम लोग देख रहे हो, Human Machine Interface, okay? तो यहाँ पे That does is it gives our सॉफ्टवेयर अलग clients रहते the हैं, कोई पे comfort लेगेसी level that पे they यूज need करता है, कुछ in order to नहीं produce होता here है. and take This it is to how a those plant diverse works, places where your they're actually packaging handing and all. the product across तो to ये customers. मशीनरीज को भी अगर So we स्टॉप करना manufacture होगा to a very high and level. अपडेट लेना Product होगा, safety then and quality is we have assured, to shut down and the they can be production line. comfortable doing whatever they पूरा. need to do with the तो product ये that comes बंद out होने of पे here. The way the of course pilot lakhs plants का work नुकसान is तो होगा ही, that ठीक Tetra है? Pak owns and operates these Then this facilities. is a chemical Our component customers rent part. them by the day. So this is the main blending ये and labs होते हैं. processing room of the pilot plant.
Our Hopefully you customers will guys supply can the enter someday ingredients and we'll into bring OT. them in on pallets and skids and so forth. पहले ही बोल दूं फोन अलाउड And नहीं होता then we assist our ठीक customers है blending so you everything guys up. have We to keep have your several phone and different everything mixing outside systems and and go analytical inside wearing that balances and helmet core or the scales. whole suit We have a nice that new you Tetra Pak's high they will shear provide it to mixer, you. Tetra Pak में previously पूरा known suit as an रहता all है. mix. If you go in automobile And then then they we give have you several helmet, 400 boots gallon batch and tanks. the Our safety main suit strength here is पूरा. that we can make a 100 gallon batch, but we can go up to a 400 gallon batch. Once the product is blended up, it'll go into the processing equipment. All the processing equipment is new. This was put in Q1 of 2016. And we have steam injection and tubular. The processing system is very flexible. It was designed like we can run high specific gravity products. This is the So Tetra Pak processing में ये control सारे center. products We हैं. have Of course, my a client very is not modern Tetra Pak, touchscreen इसलिए दिखा पा रहा HMI हूँ. system with electronic data recording, which is FDA compliant for electronic data collection and review. Everything is So you are not allowed to touch this HMI even daily on daily basis. ये महीने में एक बार या दो बार चेंजेस होते हैं, उसके बाद नहीं होते. बस ट्रैकिंग के लिए यूज होता है कि अभी क्या टेम्परेचर है और टेम्परेचर के बेसिस पे फिर वो लोग एक लॉग निकालते हैं, उसका फोटो लेते हैं कैमरा से. फोन्स अलाउड नहीं है, सो दे यूज अ कैमरा एंड देन उसको फिर रिपोर्ट बना के बाहर भेजते हैं. ठीक है. on variable frequency drives, and it's very flexible. So You can see we also have a in, Jumo chart so recorder this there. is it. तो ये ऐसा कुछ फ्लो दिखता है, टेम्परेचर वगैरह मैप्स, हीट मैप और वो सब है, टाइम स्टैम्प्स. That's electronically collecting the data. That data can be printed off or just retained electronically and maintained that way. This location here is where we watch all of the critical factors and adjust anything as needed. This is a Tetra Pak homogenizer. We have two of these. One is upstream, one is downstream. The one on the downstream side, of course, is aseptic with steam seals on the pistons. Both of these homogenizers have a maximum working pressure of 4,000 relation to pressure to whatever our safe, high pressure. And this is the A3 Compact Flex filling machine. It is sterilized on the second floor of the machine and rolled into a tube. Then the product is filled into that tube and the sets of jaws pinch that tube off into packages. When the packages leave the jaws, that is a hermetically sealed container. The product is aseptic, there's no microbes in the product, and the package will stay sterile until the consumer opens it up. The rest of the filling machine is there in order to manage. Each individual package is also given a sequence number, 1, 2, 3, 4, 5, etc., so that we can tell where in the run each individual package is located. The cap applicator glues the caps on top of the Tetra Prisma package. The machine picks up each individual cap and aligns it, and then. Okay, तो इसमें एक इंफॉर्मेशन देना है. सो इफ यू सी ये पूरा मशीन एक ही है, ठीक है, राइट. सो फॉर एग्जांपल अगर इसके HMI में मैंने एज अ अटैकर कुछ चेंजेस किया कंट्रोल लेके, तो ये पूरा मशीन फेंकना पड़ेगा मुझे निकाल के. दिस कॉस्ट फॉर अराउंड करोड्स ऑफ रुपीज. सो ये पूरा बंद होगा, प्लस इसका जो ट्रेल ऊपर का भी जो ट्रैक्स वगैरह रहेगा जहाँ से प्रोडक्ट्स लोड होके आ रहा है या फिर बन रहा है, वो प्रोडक्ट्स को मुझे फेंकना पड़ेगा. वो भी एक है. एंड देन इसका रिप्लेसमेंट आने के लिए 5-6 दिन जाएगा न्यू पार्ट आने को. तो कंपनी को उतना टाइम रुकना पड़ेगा और उसकी वजह से देयर आर इवेंचुअली लॉसेस दैट अकर. Puts a very precise layer of glue on the cap and then transfers the cap onto the package. When the package exits the cap applicator, it's ready to be used by the consumer. And this is the cardboard packer. This lines up 18 packages at a time and puts it into a cardboard container. Those cardboard containers are then manually palletized on a standard pallet. That pallet is wrapped up, stored, and once quality control is finished, this will be shipped to our customer. This is the pilot plant micro lab. Here is where we test the product before we process it for certain things like pH and total solids and viscosity. And then we also use Celsius method, and we'll do incubation for about a week and pHing. हाँ, CTA दिखा रहा हूँ. So as a CTA analyst, how I work. इधर तक ठीक है सब. So basic CTI works like this. और भी चीजें हैं, बट वी वर्क लाइक दिस. तो डेली सुबह हम लोग जाते हैं ऑन हैकर न्यूज. और यहाँ पे जितने भी सारे ब्लॉग्स हैं एक एक करके हम लोग सारे पढ़ते हैं. सो फॉर एग्जांपल
ठीक है, लेट्स थिंक समथिंग नाइस. सो Salesforce 1 प्रोडक्ट है, ठीक है. Then there is killer backdoor, no threat intel PanOS 2. ओके, इसके अंदर हम लोग जाके ये पूरा ब्लॉग पढ़ेंगे, वॉट एवर इट इज, एंड विल राइट अ ब्लॉग ऑफ आवर ओन फॉर द कंपनी. ठीक है, जो भी पढ़ने के बाद फिर इसके अंदर हम लोग को अगर कुछ आईओसीज मिलते हैं तो हम लोग वो आईओसीज का एक TXT फाइल या फिर एक डॉक्यूमेंट बना के कंपनीज को भेजते, सो दैट दे कैन ब्लॉक ऑन देयर फायरवॉल एंड राउट स्विचेस और क्राउड स्ट्राइक एंड प्रॉक्सीज. हाँ, सो इसके अंदर आई गेस आई फील देयर इज नो IOC प्रोबेबली. सो देयर इज दिस CV. हम लोग ये भी बोलते हैं कि अगर PanOS इज देयर इन अ कंपनी, वो लोग यूज कर रहे हैं उसको, तो वो CV को डिलीट करते हैं, फिर कंपनी को भेजते हैं, उस हिसाब से वो लोग उसको पैच करते हैं. दैट्स हाउ पैचिंग वर्क्स इन रियल टाइम. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो CV. दिस इज एन IP. हम लोग ये बोलते हैं कि अगर तुम लोग का IP, ये IP के साथ तुम लोग अगर कनेक्शन है, ट्रैफिक है, तो उसको मिनिमल कर दो या फिर चेक करो कि ऑथराइज्ड है या नहीं. दैट्स हाउ इट इज डन. ठीक है, देन यहाँ पे Salesforce था, इतना कुछ नहीं है, बेसिक्स था. ठीक है, दिस इज वन मेथड. सेकेंड मेथड इज देयर इज अ बॉट लिस्ट एस्टेब्लिश्ड ऑन इंटरनेट एवरी डे. तो एक आता है फ्यूडो ट्रैकर करके. Okay. So these are botnet IPs and CCs. यहाँ पे जो भी IPs है तुम लोग को वो डायरेक्टली लेके क्लाइंट को भेजना, so that they can block it on their firewall and stuff. Okay. For example, download block list पे क्लिक करता हूँ, then whichever you want. You want indicators of compromise, Surcata, botnet. This is open source and available for all. ठीक है, इसके ऊपर तुम लोग जाके ले सकते हो. For example, if I go in plaintext, तो currently there is this one entry of IP. This is malicious and it is used for botnetting. So you can just directly block this IP in your overall network. ठीक है, फिर अगर मैं नीचे जाता हूँ, there is this download IPs only. This is for C2 block list. तो ये भी सारे एंट्रीज तुम लोग अपने IPs में डाल सकते हो. On your EDR, on your proxies, that is your Zscaler or Netscaler, Citrix, whatever you are using, and on your firewalls. सारे firewalls पे तुम लोग इसको एंट्री कर सकते हो. So this is how it's done. Yep, that's it. किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ बात करना है, free to hear from everyone. हाँ, वो SRA है. इट इज फॉर जस्ट चेकिंग कि तुम लोग ने रूल्स क्या लगाए. नहीं, SRA इज अ टूल. SRA इज अ टूल, तो उसको बस चेकिंग के लिए यूज करते हैं, रिमोट सर्विसेज के लिए, कि इसको एक्सेस देना चाहिए नहीं देना चाहिए. देन प्रॉक्सी मैनेजमेंट होता है उसके अंदर, वो सब OT के लिए. यू कैन यूज इट इवन इन IT. यू कैन यूज इट इन IT एज वेल, एक्सेस के लिए. SRA टूल डालोगे तो बहुत सारी लिस्ट आएगी आपको. एनी डाउट्स? SOAR. Actually, SOAR is about that only, security orchestration and response. AI basically analyzes all the alerts and gives the actions to perform to the SOAR. But there is a limitation for that. Even so, if we do that, so for analyzing, if you use AI, firstly you will have to train AI to analyze. You will do it, okay, but there will be always a new technology coming around and always a new method established. So in that way,
तुम लोग नहीं कर पाओगे एनालिसिस, तो एआई के साथ किसी को बैठना पड़ेगा। एंड अगेन ऑन सोर के साथ एआई इंटीग्रेट करेंगे तो दे विल ओनली, आई डोंट नो हाउ अलर्टिंग मैकेनिज्म वर्क्स एट योर एंड, बट हमारे पास ऐसा है कि P1 P2 P3 P4, सो P3 एंड P4 के जो अलर्ट्स हैं that can be handled by AI and SOAR independently. So we don't need an interference of an IR or a SOC analyst L3 person to come up and close that alert. So if there is a requirement for blocking like such, I'll raise a ticket, SOAR will automatically act on it, and then AI will analyze it, and then it will go directly to the firewall and close it. ठीक है, block कर देंगे. But when it comes to a 0 day, a P3 or a correlation of event, उस टाइम पे P1 P2 इंसिडेंट रेज होगा, AI will fail and of course SOAR will also fail. So at that time you need L1 analyst and an IR to work for it. For at least Basics of course can be that's you can do it. AI can help you to analyze as well, because currently in our environment I have seen analysts working on Copilot, security Copilot, to actually analyze an alert log, what is actually happening, and then even correlate on it. So they use it. we can't say like it's Totally cannot give access to the AI. We have to work hand on hand with AI. साथ में बैठ के करना पड़ेगा वरना नहीं होगा. That's how it's going to be. Anything else?